नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों नेशन नाउ पर हैं और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल, वी आर ऑलवेज विद यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Isn't that wonderful? Now, I tell you what, as far as we are concerned, the news story which is doing the rounds everywhere, is that an Indian think tank identified by some ex-users, including the BJP IT cell. BJP IT cell, of course, has said that there is a think tank which has betrayed Mr. Modi. कि किसी think tank ने, बहुत बड़े think tank ने मोदी जी को धोखा दिया है. The others have identified it as the Ambani-funded ORF, Observer Research Foundation. Now, my point is, what have they done? The executive director of ORF is Mr. Jaishankar's son, Dhruv Jaishankar. So, what's going on here? I mean, this is kind of strange, don't you think? There are various organizations working. The one you said, this, whichever Jaishankar heads ORF. Then you got Ajit Doval's son. He's involved with some kind, where Ajit Doval's son is with some institutes. Yes. So then we got the RSS think tank that is working. We got various layers within layers that works, and which works in national interest, as they call it, making supplementary intelligence feeds, networks, and dialogues to be done, international relationship that works. So why ORF? I still can't figure out. Why is the focus on the Observer Research Foundation? They're all talking about some secret meeting that the Ambanis had, that Mr. Mukesh Ambani had with Sonia and Rahul Gandhi at 10 Janpath. So now that's all over X. I mean, it could be a rumor, but it's there. So we have to talk about it, whether we like it or not. Ambani would commit suicide by meeting at this juncture, when he knows there's no alternative to Prime Minister Modi. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये unless RSS brings a surprise in September. In September, if there's a surprise. नहीं, और दूसरी चीज़ क्या है प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि इन्होंने जो सीक्रेट, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल, जो बिल्कुल गुप्त गुफ्तगू होती है ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, इंटेलिजेंस के बीच में, वो सारी रिलीज कर दी है इन्होंने ट्रम्प के पूरे एडवाइजर्स को और यूरोपियन एडवाइजर्स को। ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब का गुस्सा इस बात पर है कि शायद जितने भी हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेट्स हैं और हिंदुस्तानी सरकार में जितने लोग हैं, सब लोग ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे हैं, बिकॉज they are all calling him a clown. So but पूरी दुनिया भी तो उठा रहे हैं, the whole world is calling him a clown, and especially within the US, you can call the Democrats or any one of them who are slightly neutral. They say, what are we following? What is the entire Congress for? What is the role of the Congress? In the time of Trump, you have made the Congress irrelevant. Are there to take any decisions, or you're going to take the only decisions maker in this country? Tariff, trades, हर चीज में सिर्फ आप, और आपका एक ही excuse है कि there's a national emergency. Where is the emergency? National emergency, and it's right time for the president to take all the powers. All the powers, including the powers of the Congress, to discuss and debate. So it's only President Trump who's functioning out there, and under the fact that there's an extreme emergency, that the country, US, is facing massive recession, and Trump is a savior. Right. Now, let's go straight across to our panel. I think we've got a wonderful panel with us. We've got some wonderful guests with us. Can we go across to our people concerned? I think we've got Dr. Anuj Kumar Tarun. Anuj Kumar Tarun साहब, नमस्कार. सर जरा बोलें, आपका फोन शायद म्यूट पर है सर, आपका फोन. नमस्कार. हाँ, अभी आवाज आ रही है सर, अभी आवाज आ रही है. थैंक यू सो मच. और शकील चौधरी साहब, नमस्कार. बड़े दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके. बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो. नाराज थे क्या सर? क्या हो गया? अरे नहीं, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है, हम तो हमेशा ही ठीक रहते हैं सर. आप ही को मिस कर रहे हैं. ऐसे अब मुंबई शहर है, और मुंबई शहर में लोग कहते हैं बहुत बारिश हो रही है. अरे मुंबई शहर में बारिश नहीं होगी तो मुंबई शहर थोड़ी होगा. ये मुंबई शहर है भाई. अगर या बारिश की वजह से ही जिंदा है हम लोग. बारिश भी जरूरी है, मगर बारिश में जो अव्यवस्था हुआ है वो भी, उस पे भी नोटिस करना बहुत जरूरी है. अरे वो तो अव्यवस्था पता नहीं कितने सालों से चल रही है. कितने सालों से चल रही है. 30 साल से तो मैं लिख रहा हूँ इस पे.
1993 से आज तक तो मैं लिख रहा हूँ उस पे, लेकिन खैर कोई हाँ बात नहीं। व्यवस्थाएं So we'll talk about it. Wait, just 1 minute. Let me go across to Dr. अनुज कुमार तरुण। अनुज कुमार तरुण साहब, आप इस वक्त कहाँ हैं? लोकेशन क्या है सर आपकी अभी? मैं बिहार से बोध गया से जुड़ा हुआ बोध गया से, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री जी जाने वाले जी, शायद प्रधानमंत्री जी का इसकी वजह से नेटवर्क की बहुत समस्या है, मैं इसलिए आवाज भी कई कई बार टूट रही है, टूट कर आ रही है। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, नेटवर्क थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन मैम, थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव गॉट 2 डॉक्टर्स ऑन द पैनल। तो अनुज कुमार तरुण साहब, 2 चीजें हैं अभी। जी सर आपका फ्रेम बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर, हीरो लग रहे हैं बिल्कुल। आपको बॉलीवुड में होना चाहिए, आप आ जाइए यहाँ पे, चलिए। शुक्रिया 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 जी सर, ऐसा है कि एक तो वोट चोरी, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ पार्लियामेंट के अंदर, वोट चोर, गद्दी छोड़ वगैरह वगैरह ये स्लोगन के साथ। और दूसरी चीज क्या है कि आज की तारीख में बीजेपी का जो आईटी सेल है वो एक थिंक टैंक को अटैक कर रहा है, कहता है मोदी जी के साथ धोखा हुआ, मोदी जी के साथ धोखा हुआ। ये ट्रेंड कर रहा है अभी ट्विटर पे, कल से, इनफैक्ट परसों से। जी मोदी जी के साथ क्या धोखा हुआ? मोदी जी के साथ ये धोखा हुआ है कि उनका कोई थिंक टैंक है, बीजेपी फंडेड हुआ करता था। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के उद्योगपति बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्हीं का थिंक टैंक है जिसने जो हमारी पूरी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स वगैरह 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 जो हैं वो ट्रंप साहब के एडवाइजर्स को और यूरोपियन एडवाइजर्स को दे दी हैं, ये कहा जा रहा है। और तो बीजेपी का आईटी सेल वो अटैक कर रहा है। जी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो पूरे देश को खुद धोखा दे रहे हैं वोट के माध्यम से, वो उनके साथ अगर धोखाधड़ी हो जाए तो सोचिए वो कैसे शासक हैं, कैसे प्रशासक हैं। यह देश के लिए चिंताजनक स्थिति है। तो आपके मुताबिक वोट चोरी के माध्यम से धोखा हुआ है देश के साथ, अब आप इसके बारे में जरा बताएं प्लीज। बिल्कुल। अब एक चीज बताइए, चुनाव आयोग के डाटा के साथ जो राहुल गांधी ने जो पावर प्रेजेंटेशन दिया, वो तथ्य तो आप सभी के पास है, सभी के सामने है, कहीं तो उसमें इफ बट है नहीं उसमें। और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि इसमें राहुल गांधी ने अपने मन से जो कुछ कहा है, तो ये तो रिसर्च की बात है, तो सोच का विषय है, डाटा एनालिसिस का विषय है। ये कहीं क्या कोई हिडन रूप से कोई आरोप लगाया क्या राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बड़े स्क्रीन पे दिखाया कि कहाँ कहाँ धोखा हुआ है। और देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि चुनाव आयोग की जिस तरह से बीजेपी और उनके समर्थक पार्टियां जो है जो वकालत कर रही थी, शक तो वहीं से हो रहा था, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो बिल्कुल ये साफ है कि हम सवाल कर रहे थे चुनाव आयोग से एसआईआर को लेकर के वोट, और जवाब देने कौन आ रहे थे? बार बार जो कि बीजेपी के लोग आ रहे थे। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ साठगांठ करके अपना काम कर रही है। अगर यह बात हमारी गलत होती तो आप खुद सोचिए, मैं एक सवाल करता हूं आपके माध्यम से कि बिहार में जो चुनाव होने हैं उसके जो वोटर लिस्ट है जनवरी में तैयार हो गया था, फिर अचानक इनको आनन फानन में एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी? दरअसल क्या है कि बिहार के चुनाव वो उनको लगा कि हम हारने वाले हैं, बुरी तरह हारने वाले हैं। पिछले चुनाव में हमारा जो हार का जो मार्जिन था वो लगभग 12,000 के वोट के आसपास था, ठीक है। तो इस बार लगा कि एसआईआर के माध्यम से अगर हम इनके वोटों की संख्या कम कर देते हैं, खास करके जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो रूरल एरिया के लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर हम अब कम करेंगे तो इनकी हार निश्चित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं साजिश का नतीजा था। आप खुद सोचिए कि नहीं तो आनन फानन में एसआईआर कराने का क्या मतलब बनता था? जी प्रदीप जी। जबकि जिन मांगों को हम लेकर सड़क पर थे, जनता के बीच में थे, उन्हीं मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया और उनको सलाह भी दिया। अनुज कुमार जी 50 रैली से अधिक मोदी साहब ने बिहार में लिए पिछले कुछ सालों में, मोर देन 50 रैलीज, वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रैवल्ड बिहार है। और डेवलपमेंट का लहर, मोदी जी का कहना है पूरा बिहार को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ट्विन इंजन सरकार कर रहा है। मगर आपत्ति क्या है? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 50 रैली तो हुआ बट बिहार को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस का भी वही कहना है, क्या बिहार को कुछ नहीं मिला? देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले खास करके मुझसे सवाल पूछा जा रहा है और मैं कल पीएम मोदी जी का कार्यक्रम है और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि उनके आने से पहले कितना खर्च किया जाता है, क्या तामझाम किया जाता है। मेरा विश्वविद्यालय लगभग 20 दिन से पठन पाठन का कार्य लगभग ठप है। सारे है जो कि रोड को तहस नहस कर दिया गया, पेड़ काटे गए हैं जो मैदान बनाने के लिए उनके, तो बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव कहते थे कि इनके रैलियों पे 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पूरा महकमा लगा हुआ 3-4 जिला का। तो लेकिन अब सवाल ये है
कि 100 करोड़ रुपया खर्च करके अगर ये रैली करते हैं तो कुल मिला के अभी तक 20 से 25 रैली कर चुके हैं ये चुनाव के समय में खास करके। और इनको बिहार के विकास की याद हमेशा चुनावी मौसम में ही क्यों आता है? अगर बिहार के प्रति इतने वो चिंतित हैं इसके विकास को लेकर, तो चुनाव के अलावा भी तो आया करेंगे। अभी तक देखिए जितने घोषणाएं इन्होंने की है, आप याद करिए कि 1,25,000 करोड़ रुपया है जो कि पैकेज दिया था आते के साथ 2015 में। लेकिन जबकि उस पैकेज को अगर आप है जो कि डेटा का है जो कि विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस राशि में वो राशि भी शामिल कर दिया गया था जिसपे और पहले से काम चल रहा था, जो पहले से क्रियान्वयन था। तो कहीं ना कहीं यह जब भी आते हैं जुमला गढ़ते हैं। अब देखिए, अब विश्वविद्यालय में आ रहे हैं तो विश्वविद्यालय से संबंधित मैं एक सवाल करता हूं कि पिछली बार जब 19 में आए तो पटना विश्वविद्यालय को उन्होंने कहा सेंट्रल विश्वविद्यालय बना देंगे। तो बताइए, जबकि अभी तक नहीं बना सेंट्रल विश्वविद्यालय। दरभंगा आए तो बोलते हैं कि एम्स बना देंगे 19 में, और 19 से लेके आज 6 साल होने को है, कहाँ गया एम्स? क्या विवाद है? सरकार आपकी विवाद क्या है? अगर कुछ विवाद है, कोई परेशानी तो आपको ठीक करके उसको बनाना चाहिए था। तो जब भी आते हैं जुमलों की बारिश होती है और चुनावी मौसम में आते हैं, चुनावी घोषणाओं को अंबार लगा देते हैं। तो कुल मिला के अभी देखिए ना, अभी मेरी एक पिछले डिबेट में बात हो रही थी कि बिजली की स्थिति बहुत अच्छी कर दी। अरे भाई, बिजली की स्थिति का करिए आप। जब एक सरकार से पहले जिस बिजली की बात कर रहे हैं वो राजीव गांधी विद्युत परियोजना था, जिसके खंभे गांव-गांव में गड़े जा चुके थे। लेकिन ये जब आए तो उसको क्या कर दिया उन्होंने? दीनदयाल विद्युत परियोजना या नाम बदल दिया। तो नाम बदलने वाले लोग हैं ये। अब बिहार में ठीक है, कुछ काम हुआ है, हम ये नहीं कहते। अगर आप सत्ता में है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे आप? लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है। अगर आप बिहार की स्थिति की बात करें तो पटना शहर को छोड़ दीजिए तो बाकी शहरों की स्थिति इतनी बुरी है। अभी बरसात का मौसम है, आपको पता चल जाएगा कि बिहार का सूरत हाल क्या है। लेकिन अनुज कुमार जी इस बार शायद इतने पुल नहीं गिरे, वो गनीमत है। जितने पुल पिछले साल गिरे थे उतने शायद नहीं गिरे इस बार। पिछली बार तो 21, शुक्रिया आपने पुल, मैं वही बोल रहा 21 या 25 गिर गए थे पिछली बार। इस बार शायद नहीं गिरे हैं। तो हमें इसलिए ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि यार इस बार आपने हमारे पे ये रहमत बख्शी है। लेट मी गो अक्रॉस टू आवर फ्रेंड फ्रॉम द कांग्रेस। सर, आप ये बताएं, राहुल गांधी जी इज टेकिंग दिस वेरी वेरी सीरियसली। शकील चौधरी साहब, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, बाकी जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, सब लोग ये वोट चोरी का मसला जो है उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड है इस पे। इस बार पहली बार वो जो फुटेज अभी चल रही थी प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में आते हुए, पहली बार ऐसा हुआ किसी भी प्रधानमंत्री को वोट चोर के नाम से स्वागत किया गया है। तो सर, ये कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? मतलब ये जो, और क्या लोगों के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? बताएं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है इसका प्रभाव। आज आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आज देश का बच्चा इस पे सवाल पूछ रहा है कि ऐसे क्या बात है और ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके चलते ये इतनी बड़ी घटना घटी। आपको पता है, जो सम्मानीय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जो अपना पीसी करके बेंगलोर की सीट का जो पूरा डेटा दिया था, जिसपे आपने देखा होगा कितना एक पूरा हमको एक मैनुअल दे दिया गया, जिसको हमको एग्जामिन करने में इतना समय लगा, जिससे कि 6 महीने बाद हमें इस पे अपनी बात रखनी पड़ी। और इतनी मेहनत से अगर हमें डिजिटल डेटा दिया गया होता तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन या हफ्ते दिन के अंदर इसको शॉर्टलिस्ट कर लेते। उसके बाद जो हमने सवाल किए, क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी कि चुनाव आयोग सवाल का जवाब आके देता? क्या हमने इस चुनावी व्यवस्था में हुई गड़बड़ी पे सवाल उठाया था? चुनाव आयोग को उसके लिए ये नहीं कहा था तुम गुनहगार हो। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए एक पहल की कोशिश की थी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनावी व्यवस्था का सबसे मूलभूत ताकत जो होता है चुनाव आयोग होता है, और वही अगर संदेह के घेरे में है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस पे चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बट सबसे बड़ा ये डाउट तो वहां पे उत्पन्न होता है वेरी फ्रैंकली कि वो डेटा जो आपको दिया गया वो मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। इट हैज टू बी रेड मैनुअली। मतलब सर, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है ना सर, कि कम से कम आप एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, नेता विपक्ष देश का आपसे मांग रहा है और आप वो दे रहे हो कि जिसमें ये उलझ जाए। तो मतलब फिर आपने रीड कैसे किया? लोगों को बिठाया होगा, पता नहीं कितने रिसर्चर बैठे होंगे। अरे हमारी पूरी कम से कम एक बड़ी टीम बैठी जी, बड़ी टीम बैठी और 6 महीना तक दिन रात उस पे काम करने के बाद वो पीसी आपके सामने प्रस्तुत किया गया, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया कि ये परिस्थिति है, देखिए देश में क्या चल रहा है।
जिस देश का भारत की मूलभूत आवश्यकता, भारत का आत्मा है लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया को अगर व्यवस्थित नहीं रखा जाएगा तो ये बहुत चिंता का विषय है, और ये चिंतनीय है। वही सवाल उठाए, मगर चुनाव आयोग ने इतनी हिम्मत दिखाई कि नेता विपक्ष को आके जवाब दे सके। तो प्रदीप जी, मेरा ये कहना है, और शकील साहब आप भी जरा सुने, और बाकी डॉक्टर अनुज कुमार और डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा आप भी सुनिए। अभी बीजेपी के लक्ष्मण सावजी साहब भी आ जाएंगे, उनसे भी पूछूंगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन मैन्युअली रीड करने के लिए डेटा दे रहा है तो फिर वापस बैलेट पेपर पे आ जाइए ना, तकलीफ क्या है? आप तो वही काम कर रहे हैं ना। बट शकील चौधरी जी, मगर ये क्या धमकाना, इलेक्शन कमीशन का धमकाना कि आपको इम्पीच करेंगे। आप एलिगेशन राहुल जी लगा रहे कि तीनों के तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंक्लूड ऑल कमिश्नर्स आर वर्किंग फॉर द बीजेपी के लिए वोट चोरी करे, हम उनको इम्पीच करेंगे। तो हाल ही में उन्होंने कहा कि 7 दिन का नोटिस दे दिया, ओथ पे आप अपना सब बयान कीजिए ओथ में, या फिर अपोलोजाइज कीजिए। तो क्या बीजेपी कहना कि अच्छा, हाँ प्रदीप जी, प्रदीप जी आवाज कट रही है आपकी। ना, बोलिए चौधरी जी बोलिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी क्या राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने की? पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। बिल्कुल जवाब तो देना चाहिए, मगर जैसे देवेंद्र चुनाव आयोग कहा, आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं, आप जानते हैं, मुझे बताइए क्या चुनाव आयोग ने राहुल नेता विपक्ष के सवालों के जवाब दिए? मगर अलग अलग बयान है। फडणवीस साहब का कहना कि मैं ओथ ले चुका हूं विधानसभा में, क्या हाईकोर्ट अगर मुझसे ओथ में एफिडेविट पूछता तो मैं नहीं दूंगा, मैं ये बोलूंगा विधानसभा में ओथ लीजिए, ले लिया हूं, मेरा ओथ हो गया। चिंता का विषय तो यही है ना, चिंता का विषय तो यही प्रदीप जी, कि सवाल हमारा चुनाव आयोग से, जवाब भाजपा क्यों दे रही है? जवाब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों दे रहा है, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रही है? सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग को देना था, चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता विपक्ष के सारे सवालों को जवाब ईमानदारी से देना चाहिए था। ये लोकतंत्र में अगर चुनावी प्रक्रिया सवाल के घेरे में होगी तो ये भविष्य एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही बुरी खबर है। देखिए साहब, ऐसा है शकील साहब, डॉक्टर अनुज कुमार और सुरेंद्र मल्होत्रा जी, अगर एक भी वोट किसी का गलती से या जान करके काट दिया जाता है, दैट इज टेरेबल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैन नॉट थ्राइव unless you have the right to vote. सर, सबसे बड़ी नींव जो है, the atoms, the molecules on which this entire system is based are votes. अगर वोट के साथ ही अगर आप कुछ मतलब हेराफेरी हो रही है या लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, that means the entire edifice crumbles. That's all that I'm saying. I want to talk to you, शकील चौधरी साहब। इंडियन यूथ कांग्रेस पोस्ट कार्ड बना के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को भेज रहे हैं कि ये जो फेक वोटर्स है उसको आप एलिमिनेट कीजिए, उस पर कुछ कीजिए, ये फेक वोटर्स को हटाना है। मगर राहुल गांधी जी जो डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, आप कह रहे हैं कि एसआईआर को हटाइए, एसआईआर को स्क्रैप कीजिए। तो एसआईआर को अगर स्क्रैप करेंगे चौधरी साहब, तो किस प्रकार से ये वोटर्स, तो अलग आपके इंस्टीट्यूशंस अलग अलग डिमांड कर रहे हैं चौधरी साहब। हाँ प्रदीप सर, ऐसा है कि एसआईआर पे हम आते हैं। मेरा पहला एक सवाल था कि क्या, मैं आपसे पूछता हूं, क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी कि राहुल जी के सवालों के जवाब देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। चुनाव आयोग ने दिया, चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए, क्या चुनाव आयोग ने दिया? नहीं दिया। एक पीसी तो चुनाव आयोग से हो सकती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो सकता था। जी बिल्कुल नेता, वी बिलीव चौधरी साहब, वी बिलीव द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अगर कुछ एलिगेशन करे देश हित में करे तो कोई भी संस्था हो इस देश का, उनको रिप्लाई करना पड़ेगा। वही सवाल तो, बुनियादी सवाल तो वही है ना। हमने वर्कआउट करके हमने लगभग 7-8 महीने दिन रात काम करके तब 1,02,000 का आंकड़ा सिर्फ एक असेंबली में दिया। आप बताइए कि ये कितना बड़ा क्या नाम गेम चल रहा है कि कहीं ईवीएम को सेटिंग में लगाया जा रहा है, कहीं इस तरह फेक वोटर का लगाया जा रहा है, कहीं यहाँ जरा फर्जी वोटरों को लगाया जा रहा है। एक कमरे में 10x8 के कमरे में 80 लोगों को इंक्लूड करके वोटर बनाया जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय नहीं है। उसके बावजूद जवाब भाजपा की तरफ से आ रहा है, जवाब भाजपा का सीएम दे रहा है। अभी चुनाव हुआ लोकसभा में, आप जानते हैं, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते, महाराष्ट्र में रहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह लोकसभा में मात्र 32% सिंगल डिजिट में रहने वाली बीजेपी
89% गेन करती है मात्र 6 महीने में। कौन सा ऐसा जिन्न निकल कर आया जो इनको इतना बड़ा चमत्कार कर दिया और इन्होंने इतनी सीटें जीत लिया और इनके अलायंस ने इतनी सीटें जीत लिया? मुझे उस सवाल का जवाब क्या नाम चाहिए था कि कैसे हुआ ये कौन सा ऐसा जिन्न 5 महीने में निकल गया? ये बोलते हैं लाडकी बहन योजना, वो जो वजीफा दिया ना 1,500 रुपए का महीने का, वो चुनाव के पहले सर, चुनाव के पहले हर अकाउंट में 7,500 रुपए गए हैं। That itself, by the way, raises a major question. That itself should have raised a major question. Let's be very clear. But I'll tell you what I'm asking is this, sir. अखिलेश यादव साहब ने कोई 18,000 एफिडेविट फाइल किए, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। अब यहां पर वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को एफिडेविट फाइल करो। अरे यार, 18,000 जो पहले आपके पास फाइल हो चुके हैं एफिडेविट, उनका तो जवाब दो। अब आप बताइए शकील साहब, इसका आगे क्या? बोलिए। सेम सर, वही सवाल है कि एफिडेविट ऑलरेडी हमारे अलायंस ने दे रखा है, आप उसको संतोषजनक रिप्लाई दे दीजिए। एसआईआर का आपने जैसे अभी राजीव जी ने जो एसआईआर पे उठाया सवाल, मुझे एक बात बता दीजिए, एसआईआर ठीक है, एसआईआर के हम खिलाफ नहीं है, आप करिए। एक बेहतरीन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनावी वोटर लिस्ट व्यवस्थित होना चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। मगर उसी एसआईआर में प्रदेश का डिप्टी सीएम का नाम 2 बार है। फिर क्या एसआईआर में काटा गया? मुझे आप ही बताइए, क्या एसआईआर में काटा गया? 65 लाख नाम, 65 लाख 4,000 नाम जो काट दिए गए, वो किसके काट दिए गए फिर? सो सर, वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं अभी सुप्रीम, दे वर सपोज्ड टू हैव गिवन दैट लिस्ट, राइट? सुप्रीम कोर्ट में उनको एक लिस्ट देनी थी ना, डिक्लेयर किया लिस्ट दे दिया गया। हाँ, मगर मुझे एक बात बताइए, एसआर को अगर सुधार के लिए बनाया गया था, एक एक्सरसाइज एकदम सुधार के लिए थी, वोटर लिस्ट को सुधार करने के लिए था, तो मुझे बताइए कि उनके डिप्टी सीएम का नाम 2 बार कैसे आ गया? जी, तेजस्वी जी का भी तेजस्वी यादव जी का भी है 2 कार्ड, सबका है 2 कार्ड। नहीं, ठीक है, तेजस्वी जी का एक नाम कट गया है, एक नाम जो बता रहे हैं वो कट गया है, एक दिखाया जा रहा था। मगर दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रैक्टिस इस वोटर लिस्ट को सुधार के लिए था, मगर ये वोटर लिस्ट की सुधार नहीं थी, ये विपक्ष के वोट काटने का सुधार था। और ये पाप किया है चुनाव आयोग ने, और इस पाप के लिए अगर राहुल जी ने वो धमकी नहीं था, देखिए जो भी इस लोकतंत्र के अंदर जो भी एक कानूनी व्यवस्था में आएगा, जो दंड का पात्र होगा उसको वो दंड मिलेगा। ये याद रखा जाए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन जब भी होगा, जो जिस दंड के लायक होगा उसको वो दंड मिलेगा। इसीलिए यार, ये क्या होता है ना, सत्ता एक वो रात है जिसकी सुबह जरूर होगी। इसलिए उन सत्ता में बैठे उन अधिकारियों को, उन मंत्रियों को, उन सबको ये सोचकर चलना चाहिए कि हम रहे ना रहे, लोकतंत्र रहना चाहिए। आज राहुल जी गली गली, गांव गांव, वहां आज बिहार में घूम रहे, क्यों घूम रहे? क्योंकि वहां का कोई भी अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति ना छूट जाए, जो इस एसआईआर के नाम पे और इस सरकार के सत्ता के बैठे दुरुपयोग करने के नाम पे कहीं कोई व्यक्ति ना छूट जाए। अभी आपने एक सवाल किया था कि एक व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए लोकतंत्र में और एक व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए। मुझे बताइए, 65 लाख नाम काट दिए गए और उसके बावजूद बेशर्मी से कोर्ट में कितना लंबा क्या नाम, इसको खिचड़ी पकाने के बाद जब कोर्ट ने स्ट्रिक्टली आदेश दिया, तब जाके वो 65 लाख नाम, ऊपर से उसमें भी स्पष्ट आदेश नहीं आया है कि उन नामों को किस तरह से काटा गया। बस देखा गया कि यहाँ विपक्ष को यहाँ वोट मिल रहा था तो वहां पर काट दिया जाए, यहाँ इतने वोट काट दिया जाए, वहां इतने वोट काट दिया जाए, और एक इनके डिप्टी सीएम का वोट नहीं है काट पाए, जिनको व्यवस्था के लिए उनके 2 नाम आज तक हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज सही कैसे ठहराई जाएगी? जी, now the only thing, let me go across to Dr. Surendra Malhotra. I welcome Lakshman Saoji साहब। लक्ष्मण साहजी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार लक्ष्मण साहजी साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी। डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, आप ये बताएं कि एनसीपी शरद पवार जी ने भी वेलकम करा है कि जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इलेक्शन कमीशन का ही डेटा पेश किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक नई चीज आई सामने कि जो CSDS नाम की संस्था है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों से गलती हो गई, बट द कांग्रेस सेज वी हैव नॉट यूज्ड CSDS डेटा। ये तो हमारा डेटा है, हमने CSDS का डेटा थोड़ी इस्तेमाल किया है। तो that is like trying to mislead, and then they said sorry, and then it was a game plan to sort of trying to show that how the Congress is not. No, but what I would like to ask you is what do we do now? अब ये 65 लाख की जो लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। Now this list will have to be examined. इसकी एग्जामिनेशन होगी कि किस वजह से
किस शख्स का नाम काटा गया है? ये 2 दिन पहले दिए ना इन्होंने। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आप इस वोट चोरी के मसले को, जो आप तथाकथित तौर पर कहते हैं कि वोट चोरी है, वो कहां तक लेके जाएंगे, ये बताइए ना प्लीज। ये तो आगे लेके जाना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एज यू वेरी करेक्टली सेड कि इवन वन वोट काउंट्स, वन वोट, एवरी वोट काउंट्स, यस एवरी वोट काउंट्स। एक वोट जब किसी का बराबर वोट पड़ेगा तो ही तो डेमोक्रेसी है। दैट इज हियर वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस हैज टू बी फॉलोड अप। ये नहीं होगा तो इलेक्शन का मतलब ही नहीं रहता। तो ये इसमें प्रॉपर इलेक्शन का बात ही कहाँ आती है? तो ये तो बहुत ही सीरियस थिंग है, बहुत सीरियस एलिगेशंस है, और उनको मतलब जवाब तो देना ही पड़ेगा। They should not act as BJP spokespersons. They have been answering. आपने देखे कि उनके आंसर्स वगैरह कैसे थे? So they have been taking their side, and we feel that they are just BJP spokespersons talking. So this is not. हम एक आदमी को हक है कि वो पूछे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. So they have to they have to like go through it, and proper list होनी चाहिए. Otherwise इसको ये elections, ये सब प्रोसेस को कुछ मतलब ही नहीं है। डॉक्टर मल्होत्रा, शरद पवार साहब वेरी सीनियर लीडर, बार बार उन्होंने हाईलाइट किया कि मैल प्रैक्टिसेस। उन्होंने ये भी कहा कि 160 सीट्स ऑफर किया था, और मैंने राहुल जी को भी इस बात बताए थे, और हम लोग परस्यू नहीं किया था। बट ये इलेक्शन रिग करने के लिए एक इलीगल मैकेनिज्म ऑलरेडी चल रहा था इस देश में। तो आगे जाके बात यह है कि अगर लोग डेथ हो गया तो उनका नाम हटना चाहिए, लोग माइग्रेट होता है उनका नाम हटना चाहिए। ये तो आप यही हाईलाइट कर रहे हो, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सिस्टम क्लेंस क्यों नहीं हो रहा है? सिस्टम अपने आप ट्यून क्यों नहीं हो रहा है? ये जैसे 65 लाख, ये 65 लाख वोट इतना बड़ा क्यों, उसको टाइम पर घटा क्यों नहीं? तो क्या जो ऑपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं, यू नीड टू वेरीफाई इट इंस्टेड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। आप ओथ दो, आप ये करो, आप वो करो, आप कानून में ये फॉर्म भर दो। लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन स्टेचर इतना बड़ा, शरद पवार साहब, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी जब कहते हैं तो स्यू मोटो कांग्रेस लेना चाहिए। डॉक्टर मल्होत्रा जी, so this is what everybody has to come forward, and as we can very clearly see the all जो सीनियर लीडर्स है अभी वो सब साथ में आ गए हैं। There is किसी का दो राय नहीं है इस मामले में। Everybody is come together and they are trying to fight, and they want the answers. They want the answers not only for the political gain or anything, but it is the answers which is required by the people of India. Otherwise यहाँ पे democracy कैसे रहेगी? But if no answers are forthcoming, what happens? So no answers are forthcoming, then they have to do something. They have to सब लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा इनके साथ। लोग पूरे सबको साथ में। Because your best bet today, before I go to Lakshman Saji साहब of the BJP, for the opposition, the best bet today is the Supreme Court. वो जो 65 लाख नाम जो है ना, मैंने आपसे पूछा, आप लोगों ने मुझे बताया कि वो फाइल हो गए, तो I just read that report and I've gone into the site. वहां पर क्या है कि सर explanations are very confusing. शकील साहब और डॉक्टर अनुज कुमार साहब, जो एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है ना कि क्यों निकाला गया है इसको वोटर्स लिस्ट से, वो जरा कंफ्यूजिंग है। दैट्स योर बेस्ट बेट। अगर आप उसके ऊपर अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो शायद कुछ हो सकता है। Now, I want to ask Dr. Sonal Malhotra, is the India Alliance breaking up? Omar Abdullah फूट गया है। Omar Abdullah कह रहा है कि ये सब कोई चीज में वेट मतलब वजन नहीं है। हम जब जीतते हैं तो हम आक्षेप नहीं करते, हारते हैं तो ये करते हैं। और ओमर अब्दुल्ला अपने इंस्टेंस कहा कि लोकसभा से ज्यादा असेंबली में उनको वोट शेयर बढ़ गया है, तो मैं कैसे राहुल गांधी जी के साथ चलूं? और फिर आप कांग्रेस का खुद कर्नाटका में राजन्ना, वो खुद विद्रोह किए कर्नाटका गवर्नमेंट के खिलाफ, बोले हम सत्ता में थे और हमको देखना चाहिए था जब ड्राफ्ट वोटर्स आए थे तो हमारा। तो हाउ डू यू सी, इज द इंडियन अलायंस not Indian alliance breaking up? That somebody may have their own personal opinions here and there, but overall as we can see very clearly that everybody is together. Even our party is also support with Congress, and as you can see संसद में भी वहाँ पे संसद के वहाँ भी कितने जोरदार आंदोलन वगैरह प्रोटेस्ट सब लोग ने कर दिया। सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड एवरीबॉडी वाज टुगेदर। इट इज ओवरऑल पूरे इंडिया के सब कोने कोने में से जो खासदार थे सब लोग साथ में थे। Everybody, all the MPs were together. So according to you, India Alliance is together. At least they're together on this. All right. So, but I don't see the same degree of militancy or aggression from, say, Mamata Banerjee
or for that matter, Mr. M.K. Stalin. They're kind of reticent about the entire thing. They haven't really come out. Let me go across to Lakshman Saoji साहब. Lakshman Saoji साहब, 65 लाख की लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है. नमस्कार सर, जय सिया राम. 65 लाख की लिस्ट जो है वो दे दी गई है, लेकिन उसके साथ जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसमें जरा कंफ्यूजन है. कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये शख्स जो है ये क्या मर गया है, ये क्या है वगैरह. उसमें जरा आई थिंक देयर लॉर्डशिप्स व्हेन दे स्टडी दी, जब वो स्टडी करेंगे इसको तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन से कुछ और भी सवाल पूछेंगे. लेकिन आप ये बताएं सर, आपको क्या लगता है, आपके लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि आपके 32% वोट यहाँ पे कैसे बढ़ गए? आपके 32% वोट आए थे, आपके 89% वोट चले गए, वो कैसे बढ़ गए महाराष्ट्र में? क्या चमत्कार किया आपने? लक्ष्मण सावजी साहब. बजाज साहब. जी सर. नंबियार साहब नमस्कार. सब प्रवक्ताओं को मैं जरा थोड़ा सा देर से ज्वाइन हुआ. बात ऐसी है, जो सवाल चुनाव आयोग के लिए है उसके जवाब चुनाव आयोग ने देने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जी. जब तक ये राजनीतिक माजरा बढ़ाने का जब बात आती है, तो जो भाजपा के ऊपर जो आरोप लगा रहे होंगे तो उन्होंने खुद को जरा इतिहास में गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जब हम विरोधी दल में थे तो हमने ये आरोप नहीं लगाए हम हारते थे, तो हमने जनता का विश्वास हासिल किया, विश्वास संपादन किया और आज हम इस स्थान पर है. आज हम 10 साल से सत्ता में है. जो लोग 50-55 साल सत्ता में रहे उन्होंने जो रातें गुजारी ना, अभी के प्रवक्ता बोल रहे थे सत्ता ये रात है, सुबह होने वाली है, तो आपकी रात खत्म हो गई, हमारी सुबह हुई है अभी. तो बात ऐसी है कि इसका एक सिस्टम है. हमारा जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के सवाल के जवाब चुनाव आयोग देगा, लेकिन जहां तक मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं और पिछले 40-45 साल से इस प्रक्रिया में हूं, अपना अपना एक सिस्टम है. हमारा जो चुनाव ऑफिसर होता है जिले का, वो जिले के कलेक्टर होते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव ऑफिसर होता है वो कोई ना कोई तो तहसीलदार या कोई ना कोई तो हमेशा काम करने वाला एक आदमी जिम्मेदारी होती है जी. जो बीएलओ होता है वो कहीं ना कहीं तो डिपार्टमेंट में काम करता है दूसरे, जब चुनाव नहीं रहता है तो. चुनाव आयोग की स्वतंत्र कोई ऐसी यंत्रणा डे टू डे बहुत कम मात्रा में दिखने को मिलती है. हमारा इतना बड़ा जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो उसमें उसकी जो सिस्टम लगाई हुई है, जब वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए जो समय दिया जाता है, उसके बाद उसकी जो चेक करने के लिए भी समय दिया जाता है, उसका प्रोग्राम तय होता है. हर कॉन्स्टिट्यूंसी की जब रचना होती है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की जब लिस्ट आती है तो लिस्ट में उसमें बदलाव देने के लिए भी कुछ समय दिया जाता है. और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है. आज भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी की जब लिस्ट आती है तो लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद इसमें सुझाव के लिए समय दिया जाता है जी. 3-3 महीना 6-6 महीना समय दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है. और जो बीएलए रहता है उसका खुद का फोटो, उसका आइडेंटिफिकेशन देके चुनाव से पहले सब दलों को मांगा जाता है. सब दल उनके जो दल के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो चुनाव के ऑफिसर में हमारे बीएलए के लिस्ट सबमिट कर देते हैं. जब मतदान का दिन आता है उस समय भी जो प्रक्रिया होती है, उस समय हर एक दल का कोई ना कोई तो जिम्मेदार आदमी वहां रहता है. इसकी मीटिंग होती है, चुनाव दल के ऑफिसर सब अध्यक्षों को बुलाते हैं. यह सब प्रक्रिया है और हर एक लिस्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी इसके बारे में जो कुछ होगा उसके लिए न्यायालयीन व्यवस्था है. अभी जो इनका जो फेक नैरेटिव फैलाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, सब पिछले बार जब बिहार का चुनाव आया था तो पुरस्कार वापसी का एक षड्यंत्र रचा गया था. वो पुरस्कार वापस देने वाले अभी कहां है, वो पुरस्कार कहां है, वो सब चला गया. चुनाव के बाद सब बदल गया. लोकसभा का चुनाव आया तो संविधान बदलने वाले हैं, संविधान बदलने वाले हैं. और जब संविधान के ऊपर जब हम काम करते हैं तो संविधान के प्रति इनके क्या रिस्पेक्ट है संसद में आज दिखाई दिया. जब 39 लोकसभा चुनाव का जब सुधार हुआ था उसमें संविधान का, तो उस वक्त एक प्रधानमंत्री को इतना बड़े अधिकार दिए गए थे.
और अभी आज जब गुनेगारों के प्रति कुछ कोई कानून बनने जा रहा है तो इनको संविधान दिखता नहीं है। इसलिए फेक नैरेटिव फैलाकर हमको जिंदा रहना है। हमारी बाप की जागीर है, 50-50 साल सत्ता हमारी रही, अभी भी हमारी ही रहनी चाहिए। ये जो दानत है डेमोक्रेसी में चलेगा नहीं। लोगों ने आपको नकारा है, जब तक लोगों का विश्वास आप हासिल नहीं करते हैं जब तक तुम्हारी यही औकात रहने वाली है। कितने भी चिल्लाओ, कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून की लड़ाई कानून से लड़ो। ये बाहर जो माजरा फैलाने का जो नाटक चल रहा है, अरे इनकी पूरी 50 साल जिंदगी बूथ कैप्चरिंग के सरकार लाने पर गई। बूथ कैप्चरिंग करके सरकार लाते लाते जिन्होंने 50 साल बिताए वो ढोंग रचा रहा है डेमोक्रेसी का। अभी शर्म आनी चाहिए। क्या बात राहुल गांधी जी 1300 किलोमीटर का वोट अधिकार यात्रा, नौटंकी लोगों ने 1300 किलोमीटर जाएगा। राहुल गांधी जी सुनिए ना, 1300 सुनिए, फिर इसके बाद बोलिए। के प्रति कोई निष्ठा नहीं, जनतंत्र के कोई विश्वास नहीं। आप पे जब चार्ज लगाए, साहू जी साहब सुनिए ना, आपके तीनों इलेक्शन कमिश्नर मोदी साहब के साथ काम कर बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। ये फेक नैरेटिव है। इम्पीच करेंगे इनको कोर्ट में जाकर इनको जो चुनाव आयोग के खिलाफ करने का सब करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मोदी साहब के ऊपर, भाजपा के ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। बूथ कैप्चरिंग के ये कांग्रेस के खिलौना है। कांग्रेस आज तक वही जीत के, मौलाना आजाद जब पहले शिक्षा मंत्री बने थे ना, वो हार गए थे चुनाव में। 20,000 वोटों से हारने वाले आदमी को नेहरू ने बोला अगर तुमको मुख्यमंत्री रहने का है तो इनको पहले डिक्लेयर करो ये जीते करके। ये इनकी औकात है कांग्रेस की। क्या बात करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करके नेहरू खुद प्रधानमंत्री बने थे। बूथ कैप्चरिंग नहीं होता तो वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते थे। ये हमको सिखाएंगे डेमोक्रेसी क्या है। सर जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, कहां से बोल रहे हैं इन्होंने सरकार कैसी चलाई है, इन्होंने क्या 2014 तक का राजीव जी प्लीज लिया जाए। ये ऐसे प्रवक्ताओं को अगर बुलाए जिनको कुछ भी ज्यादा में स्टडी करके नहीं आते हैं, तो ऐसे प्रवक्ताओं को ना बुलाया जाए तो उनके साथ डिबेट करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। एक मिनट राजीव जी, इन लोगों ने ये संविधान की बात, लक्ष्मण साहू साहब आपकी बात आ गई। लक्ष्मण साहू साहब आपकी बात हर एक ने सुन ली। डॉक्टर अनुज कुमार, मैं आ रहा हूं, शकील साहब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अनुज कुमार, ये कहा जा रहा है कि आपकी हिस्ट्री है बूथ कैप्चरिंग की, विच इज करेक्ट। मैंने भी देखा है भागलपुर के इलेक्शन में, तो 1989 में भी देखा मैंने किस प्रकार बूथ कैप्चरिंग की गई थी। वो तो हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है, और तो और छोड़िए उस वक्त के दूरदर्शन में हमने दिखाया। लेकिन मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं कि अभी जो आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ये हुआ, उसके साथ में आपने डेटा भी पेश किया है। जैसे प्रदीप जी ने कहा, डोंट यू थिंक द इलेक्शन कमीशन जस्ट कम आउट, इनवाइट एवरीबडी, टॉक टू एवरीबडी, हर एक को बुलाइए ना, अपने पास बुलाइए, भाई ये आपका डेटा है, ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है साहब, इनसे आप बात कीजिए, इनको कन्विंस कीजिए कि ये आपका डेटा गलत है। डॉक्टर अनुज कुमार, आपको लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए? बताएं सर। बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात कि अक्सर देखिएगा कि बीजेपी वाले लोगों से जब कोई सवाल करिएगा तो इतिहास के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इतिहास में बहुत सारी गलतियां हैं, वर्तमान पे बात करिए ना आप जी। जैसे कि कांग्रेस, अब जहां तक आप वोट चोरी की बात है, SIR की बात है, देखिए बहुत गंभीर मसला है। आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ। महाराष्ट्र में है जो कि पूना पैक्ट समझौता हुआ, आपको याद होगा कि पूना पैक्ट समझौता में क्या था, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए जी लोकतंत्र में। क्योंकि और अब बताइए कि जिस तरह से SIR के नाम पे मतदाता सूची तैयार की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? अगर सही होता तो उसमें ट्रंप के नाम से मतदाता सूची में नाम नहीं आ जाता, कुत्ता कुमार के नाम से मतदाता सूची नहीं बन जाता, एक एक घर में 200 लोगों का नाम कैसे आ गया? ये सारे के सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ये चिन्हित करता है कि जल्दीबाजी में मतदाता सूची बनाई गई है और ये अपनी सुविधा के अनुसार बनाए। देखिए कोई रूटीन वर्क है, हर इलेक्शन से पहले मृत लोगों का नाम काटा जाता था, जो 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनका नाम जोड़ा जाता था। आपको याद? जी बोलिए सर। इस डॉक्टर अनुज कुमार स्टिल विद अस? पीछे से एक एडिशनल लिस्ट दी जाती थी जी। कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग जोड़े। जी,
आवाज आ रही है मेरी? आ रही, अभी आ रही है सर, आ रही ये है। कोई रूटीन वर्क था ये हमेशा का। और इसी चीज तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये रूटीन वर्क था कि जितने मृत लोग होते थे उनका नाम काटा जाता था, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग थे उनका नाम जोड़ा जाता था, अब एडिशनल लिस्ट दे दी जाती थी। इसी लिस्ट की हम मांग कर रहे थे शुरू में। तो सांप्रदायिक चेहरा है इनका, ये तो धर्म की राजनीति करते हैं। तो शुरू में तो कह रहे थे रोहिंग्या का है जो कि नाम काटेंगे, बाहरी घुसपैठी जो आगे उनका नाम काटेंगे। अरे भैया आप लिस्ट जारी करके बताओ ना कितने रोहिंग्या थे इसमें, कितनी घुसपैठियां थे इसमें। और अगर ये सारे गलत थे तो 2024 में जो बिहार में 40 सीट पे चुनाव हुआ, उसी सीट की बदौलत आप सरकार बनाए हुए हैं केंद्र में, आप उसको खारिज करिए अगर आपको ऐसा लगता है तो तमाम सवाल हैं कि जो इनके सख्त जो चुनाव आयोग पे संदेह पैदा करता है। आप एक चीज बताइए, अब राहुल गांधी पे कह रहे हैं कि एफिडेविट दायर करें, जबकि राहुल गांधी ने पूरा डाटा का जो एनालिसिस करके बिल्कुल उस पर रिसर्च करके सबके सामने पीपीटी प्रेजेंट किया है। जबकि अनुराग ठाकुर इनके पार्टी के हैं, अनर्गल बात करके है जो कि बिना कोई डाटा का है, जो कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, उन पर तो कभी आरोप नहीं लगा कि आप एफिडेविट दायर करिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है। अनुज कुमार जी, मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं। देखिए साहब, अभी क्या है कि बात कहां अटक रही है। वो कह रहे हैं देखिए डर गए, एफिडेविट फाइल नहीं कर रहे, एफिडेविट हलफनामा नहीं दे रहे। सर दे दीजिए, क्या है उसमें? सर 18,000 एफिडेविट तो है ना पहले समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर भी अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके ऊपर भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया है, तो एफिडेविट दे दीजिए, क्या है उसमें? बोलिए ना सर। ये चुनाव दरअसल क्या है ना, चुनाव आयोग खुद संवैधानिक संस्था होकर संवैधानिक चीजों को मजाक बना रही। अब राहुल गांधी कोई साधारण आदमी तो है नहीं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। वो he has a cabinet post. Sir, he has a cabinet post with all the rights of a cabinet minister. जी बिल्कुल, वो पहले ही शपथ लिए हुए हैं। दूसरी बात देखिए, बिहार के चुनाव को लेकर जितना जो ये खेल चल रहा है, बिहार की जनता इनको नकार दी है। आप अगर देखिए, मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग देख लीजिए, राहुल गांधी तो सिर्फ जागरूक करने की यात्रा निकाले थे, लेकिन यह यात्रा है जो कि जन आंदोलन में तब्दील हो गया। लाखों की भीड़ आ रही है, हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग हैं जो कि जुड़ जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता समझ रही है कि ये शतरंज के खेल में जिस तरह से हमेशा चाल बदलते रहता है, तो कभी ये ईवीएम बदली करते हैं, कभी बटन दबाइए किसी और पे वोट पड़ेगा किसी और पे, कभी ईवीएम बदली करेंगे, कभी वोटर लिस्ट में काट देंगे। तो कई तरह के इल्जाम हैं जिसको बार बार डॉक्टर अनुज कुमार इसको समझ गई है। ओथ वाली आपने कहा ओथ बीजेपी आज ही स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है कि ओथ में राहुल गांधी जी हमेशा झूठ बोला है, हमेशा झूठ बोलकर अपोलोजाइज किया है, चौकीदार चोर है। उन्होंने कहा ये चौकीदार चोर है, जब कहा था ओथ लिए थे, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी अपोलोजाइज किया। रफेल पर अनकंडीशनल अपोलोजाइज किया, रफेल पर अनकंडीशनल। तो क्या कौन सी चीज माने राहुल गांधी जी का, कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल के अपोलोजाइज? ये बीजेपी का कहना है। अब ये क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक तो प्रूफ हो गया ना कि इन्होंने वोट की चोरी की है, इसका मतलब चौकीदार ही चोर था ना। उसमें अपोलोजाइज किया, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगा था राहुल गांधी जी ने। चौकीदार यहां पर मैं एक सवाल पूछता हूं सर, बोलिए। चलिए पहले आप प्रदीप जी के सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए प्लीज, अगर बोलना है। देखिए, आपने है जो कि चौकीदार चोर का, खैर वो अलग प्रसंग है, लेकिन इसके बाद भी अब तो चोरी, वोट की चोरी की तो प्रूफ कर रहे हैं ना हम लोग, डेटा के साथ हम बता रहे हैं ना। अब क्या दिक्कत है इसमें? रफेल में भी कुछ एलिगेशंस लगाकर अपोलोजाइज किया सुप्रीम कोर्ट से, वो भी कहना। अब सावरकर के मामले में फिर वही चल रहा है। वही कह रहे हैं ना कि कभी भी जब देखिए, विपक्ष का काम है सवाल करना। भाई आपको जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, हम सत्ता में नहीं है। हम जो जनता की जो सरोकार के जो मसले हैं, जो उनका सवाल है, वो सवाल करना हमारा काम है। और जब भी हम सवाल करते हैं तो उल्टा हमें देशद्रोही घोषित कर देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ तो ये है तो वह, यानी जवाब से हमेशा ही भागते रहे हैं। कभी भी आपने देखा नहीं कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था, उसमें कैसे चले गए, सर्वदलीय मीटिंग में छोड़कर भाग गए। जब राष्ट्रीय हित की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पे बात होती है, लोकतंत्र बचाने के लिए SIR जैसे मसलों पे बात होती थी, जो कि चर्चा नहीं करना चाहते, तो हमेशा विपक्ष के सवालों से भागते रहे हैं। और जनता अब समझ गई है। बिहार में जितने भी सर्वे हैं उठाकर देख लीजिए आप, हमारे जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम एक नंबर पे चल रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, जैसे चाहे सी वोटर हो चाहे कोई भी, एक नंबर पे चल रहे हैं। सॉरी साहब, आपके पास आता हूं, एक मिनट सर जी। राइट, लेट मी गो अक्रॉस टू शकील साहब। शकील साहब, दूसरा जो सवाल उठता है, कांग्रेस जो भी कह रही है और बाकी जो इंडिया अलायंस जो भी कह रही है, उसके ऊपर यह सवाल उठता है सर कि अगर 2024 की इलेक्शन में धांधली हुई है, वोट चोरी हुई है, तो सर ये तो मतलब सिर्फ 240 पे ही रुक गए ना। 2019 में 303 लाए थे, एटलीस्ट 303 तो ले आते।
अगर 400 पार लाने में डिफिकल्टी थी तो चलो 350 ले आते, और जितनी मैंने प्रेडिक्शन करी थी 335 आएंगी। मैं तो समझता हूं कि बीजेपी ने जान करके मुझको गलत साबित करने के लिए 240 सीट लेकर के आए लोग। मैं सर आपसे पूछ रहा हूं, why didn't they get enough seats? That's what I want to know. अगर चोरी ही करनी है तो भैया पूरी खुल के चोरी करो ना, कौन रोक रहा है? आप मुझे बताइए। नहीं शकील साहब पूरा सवाल सुन लें। आप अगर 2024 के चुनाव में मान लीजिए ईवीएम ऐसे ही होते कि वोट जिस मर्जी को डालो पड़ेगा बीजेपी को, तो 400 सीट अगर 400 पार भी हो जाती तो आप क्या कर लेते? यही करते जो अभी कर रहे हैं, इनके पास तो 400 आ जाती। सो व्हाई डिडंट दे डू इट? आई वांट टू नो। सर बताइए शकील साहब। अब आपका सवाल बिल्कुल आपने वाजिब उठाया है। इनका प्लान तो 400 का पार का था। अभी मैं आपके सवाल से पहले मैं एक ज्यादा नहीं 30 सेकंड लूंगा सर। आप जितना मर्जी साथी जो बोले कि क्या नाम जो बीएलओ का एक्सप्लेनेशन बताए कि अपने यहाँ 30 साल के राजनीतिक कैरियर में इनके बीएलओ किस तरह काम करते हैं, बीएलए किस तरह काम करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ बोलने से पहले राजनीतिक मंच पे राजनीतिक अखाड़े में बीएलओ और बीएलए से ही काम कर करके यहां तक आए हैं, तो अच्छी तरह पता है बीएलए कैसे काम करता है, बीएलओ कैसे काम करता है। अगर वाकई बीएलए या बीएलओ जो का नाम सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा होता, अभी इन्होंने कहा वो ईमानदारी से काम करता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग का कर्मचारी होता है। अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा होता तो एक एक घर में 8x12 के घर में 50-50, 80-80 वोट नहीं होते। अगर वो ईमानदारी से कर रहा होता तो 1,02,000 वोट सिर्फ एक असेंबली में इस तरह से फेंक नहीं पाए जाते। अगर वो अपनी ईमानदारी से लोकतंत्र के उस सिपाही की तरह काम कर रहा होता तो ये आरोप नेता विपक्ष को नहीं उठाना पड़ता। अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा होता तो यकीन मानिए, अगर बीजेपी ने, जैसे आपने कहा 400 आंकड़ा पार कर जाता, अगर बीजेपी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा होता तो ट्रिपल डिजिट में ही नहीं जाती बीजेपी। वो बीजेपी का अलायंस और बीजेपी सब 150 सीट के नीचे रहती। सर ये बताइए तो सही, खुद का ट्रिपल डिजिट नहीं जाता। ये हमारा अपना आंकलन। लोग परेशान थे, सर सवाल का जवाब दीजिए ना। लोग परेशानी में थे मगर फिर भी सीटें इनकी निकल रही हैं। सर सवाल का जवाब दीजिए ना कि सिर्फ 240 पे ही क्यों रुके, 400 क्यों नहीं आए? सर 400 सीट ला सकते थे। मैं तो ये बोल रहा हूं कि ईवीएम अगर पहले से ही रिग्ड है, इट इज अ रिग्ड ईवीएम, सो गेट 400 सीट्स। And BJP, sir, I know how the BJP works. Let me tell you very frankly, I watched them. You have also watched them, but you are a very young man. I'm not trying to say anything else except बिल्कुल sir, सही कह रहे हैं। Sir, I've been in journalism since 1982. 1982 से मैं जर्नलिज्म में हूँ सर। मेरी पहली नौकरी, मेरी पहली नौकरी अरुणा आसावाली जी की पेपर द पेट्रियट में थी दिल्ली में। आर के मिश्रा जी मेरे एडिटर हुआ करते थे। उसके बाद मैं स्टेट्समैन में गया, उसके बाद सूर्या में गया। सूर्या यूज्ड टू बी ओन्ड बाय डॉक्टर जे के जैन ऑफ द बीजेपी। तो मैंने हर एक के लिए काम किया है, कांग्रेस के और तो छोड़िए, नेशनल हेराल्ड में भी काम किया है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बीजेपी का काम करने का तरीका सर ऐसा होता है, वो 24 घंटे काम करते हैं। मैंने खुद देखा है। कांग्रेस में क्या होता है, यार काम करेंगे जब चुनाव आएंगे तब काम करेंगे। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, आप एडमिट करें ना करें, हम लोगों ने कांग्रेसी को देखा है यहाँ पे। अरे अभी क्या जाना है, कोई पार्क में घूम रहा है, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, अरे भाई कुछ लोगों वोटर, अरे यार छोड़ो ना, जब चुनाव आएगा तब देखेंगे। सर बीजेपी का ऐसा नहीं है। बीजेपी का जो कार्डर है, स्पेशली जो आरएसएस का कार्डर है, दे वर्क 24/7। सो ऑल आई एम सेइंग इज इफ दे हैड गॉट 400 सीट्स यू वुड हैव रेज्ड द सेम ऑब्जेक्शन। अभी वही ऑब्जेक्शन आप रेज करते ना कि देखो जी चोरी से ले आए, वोट चोर, ये चोर, वो चोर, डकैत। चलो चोर नहीं बोलते, डकैत बोल देते, और क्या होता? नहीं। लेकिन और क्या होता उससे, ये तो बताओ। व्हाई डिडंट दे डू इट? सर ऑल आई वांट टू नो इज, आई एम नॉट सेइंग व्हाट कुड बी द रीजन, आई वांट टू नो Why didn't they do it? 400 पार क्यों नहीं किया? अब आप बताओ, बोलिए सर। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आपका काम करने का बहुत दिनों से हम आपको फॉलो भी करते हैं। थैंक यू सर। आपका काम करने का तरीका बहुत लंबा है, उसके आपके अनुभव पे कोई सवाल या निशान नहीं है। मगर 400 पार नहीं हुआ इसके लिए कि वो इतनी उम्मीद ही नहीं लगाए बैठे थे। उनको लगा था कि हमारा काम हो गया है, हम 400 पार इसमें कर लेंगे। अभी एक सवाल उन्होंने उठाया कि हम संविधान पे उंगली उठाते। अरे संविधान को खत्म करने के लिए आप ही के लोगों ने लगातार, बड़े बड़े नेताओं ने लगातार इस बात को रेस किया कि हमें 400 दीजिए, हम संविधान में अमेंडमेंट करेंगे, हम संविधान को बदलाव करेंगे। हमने तो उसी बात को उठाया। हमारे किसी नेता ने पहले कहा क्या? बोला उसमें कोई दो राय नहीं है। बट बिफोर आई गो टू डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, देन प्रदीप जी जस्ट वन उसके बाद आप पूछ लीजिए। देन आई हैव टू गो टू डॉक्टर मल्होत्रा, देन फॉर सममिंग अप आई हैव टू गो टू लक्ष्मण साहू जी साहब। नाउ पॉइंट इज,
लक्ष्मण सौजी साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था, जिसके ऊपर मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं। जो बीएलए तो आपका है ना, ब्लॉक लेवल एजेंट तो आपका है ना, वो तो आपकी पार्टी का है। आपके बिहार में को 70,000 के करीब एजेंट थे, आरजेडी के, कांग्रेस के, सबके मिला के। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाई? सर जब ये 65 लाख नाम कट गए तब आपके लोग क्या कर रहे थे वहां पे? आप मुझे ये तो बताइए। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए कि कांग्रेस के लोगों ने बॉम्बे की और मुंबई की और महाराष्ट्र की इलेक्शन में क्या किया। आई डोंट वांट टू से इट, आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, आपके एजेंट वहां पे क्या कर रहे थे सर? उनके पास भी तो लिस्ट आई है, उन्होंने साइन कैसे किया उस पर कि यस वी आर सेटिस्फाइड विद द सर्वे? सर सेटिस्फैक्शन सर्टिफिकेट तो लेते हैं ना हर एक एरिया का सर्वे करने के पहले। तो आपके एजेंट ने वहां साइन कैसे कर दिया, ये तो बता दो। आप बताइए शकील साहब। ये सवाल हमसे है आपका क्या? सवाल ये जिस तरह से वहां पर चुनाव आयोग ने या जिस तरह के वहां के बीएलओ ने फॉर्म भरे हैं, वीडियो तमाम वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे चल रहा है, किस तरह से खुद भर के खुद साइन कर करके जमा किए। आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, ये वीडियो तमाम वायरल हुए हैं। इसी तरह से इसका हमें अंधेरे में रखा गया। अगर हमारे सवाल रेस किए जाते, हमारे लोकल वर्करों को कंसीडर किया जाता, तो ये नौबत आती ही नहीं। शकील साहब आप पक्का बोल रहे हैं? 65 लाख नाम काट दिए गए बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। सुप्रीम कोर्ट छोड़िए ना, बता रहे थे कि कौन से नाम काट दिए गए। सर आप तो बहुत ऊंचा चले गए। मैं तो बीएलए की बात कर रहा हूं, आपके खुद के ब्लॉक लेवल एजेंट की बात कर रहा हूं। बीएलओ तो सरकार का होता है, बीएलए तो आपका होता है ना। तो बीएलए के तो हमारे बीएलओ को नहीं, हमारे बीएलओ को पूरे डेटा नहीं दिए गए, तो उनका सिग्नेचर भी नहीं लिया गया आपके मुताबिक? हाँ नहीं लिया गया। बहुत प्रदीप जी इस तरीके के ना जाने कितने होंगे। क्या होता है देखिए, किसी बूथ पे 10, 20, 50 को कटना होता है। आज का विषय जो है और एक महत्वपूर्ण है चौधरी साहब, बात यह है कि द 130th जो अमेंडमेंट लेके आ रहा है संविधान का, ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है मोदी साहब। अगर प्राइम मिनिस्टर भी कन्विक्शन के पहले 30 दिन अगर जेल कटता है तो उनको जाना पड़ेगा, सीएम को जाना पड़ेगा, मिनिस्टर को जाना पड़ेगा। इतना अगर ट्रांसपेरेंसी कोई ला रहा है कि प्रधानमंत्री भी शक के दायरे में है और 30 से 30 दिन जेल कटा है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसका विरोध क्या है? क्या है विरोध? क्या आपको लगता है कि आप जो बार बार लोकतंत्र खतरे में है, डिक्टेटोरियल अप्रोच है, ये एक ट्रांसपेरेंसी का अप्रोच है, इसमें विरोध क्या हुआ? क्या विरोध है शकील चौधरी साहब? इसका विरोध सिंपल है, क्योंकि आदमी की प्रोफाइल उसके सिविल से, जैसे हम लोन लेते हैं तो हमारा एक सिविल रिकॉर्ड निकाला जाता है ना कि हमारा क्या रिपोर्ट है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बहुत बेहतरीन पत्रकारिता है, इस सरकार के 11 साल का सिविल रिपोर्ट क्या है? कि लोगों को जेल में डाल दो, चाहे वो मंत्री विपक्ष के जितने भी नेता है सबको जेल में डाल दो। अगर ये कानून आता है, जिस तरह से नैतिकता के नाम पे ये कानून लाएंगे और अपोजिशन के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को जेल में डाल के और बिना किसी इफ बट के, बिना किसी कारण के 31वें दिन में पावर पूरा चले जाएगा राज्यपाल के पास, क्या होगा? अरे जब पहले से एक बिल है ऑलरेडी कि अगर किसी को सजा हो जाती है तो वो अपने आप स्थान रिक्त हो जाता है। अभी आपके सामने कल हाई कोर्ट ने, आपने अब्बास अंसारी का प्रकरण देखा होगा, कल हाई कोर्ट ने उनको बहाल किया, जबकि उनकी सीट, विधायक की सीट खाली रिक्त कर दी गई थी। ऐसे अगर इस तरह का असंवैधानिक कानून लाया जाएगा तो बात बात पे, और सबसे बड़ी चीज ये है, ये संवैधानिक अमेंडमेंट था, इतने आसानी से तो सरकार के पास ये अधिकार था ही नहीं कि कर लेती। ये किस समय लाया गया, इसकी टाइमिंग पे सवाल है। सरकार को पता था कि पूरा देश, आप और पूरे देश की मीडिया, जो मीडिया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब राहुल जी इंग्लिश में बोल रहे थे तो हिंदी चैनल दिखा रहे थे, और जब वो हिंदी में बोल रहे थे तो इंग्लिश चैनल दिखा रहे थे। ये हाल था न्यूज चैनलों का, जिनको मीडिया कहते हैं, ये हाल था उन चैनलों का। अगर उन चैनलों पे दिन रात आज एक ही बात हो रही थी, कौन देखता है सर? एक ही बात हो रही थी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। उस वोट चोरी की बात को दबाने के लिए ये एक नया डिबेट शुरू हो जाए, उसके चलते एक प्री प्लानिंग कानून लाया गया। अभी आप 2 बीघा जमीन वाले पास नहीं हो जाएगा, इसमें आसानी से इस कानून को पास नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो त्रुटियां हैं उसको उसको दूर करके, but it's ultra virus of the constitution anyway. Sir, let's be very clear, it's ultra virus of the constitution anyway. Constitution and the law says very, very clearly you are innocent till proven guilty. Let's be very clear. I think Dr. I think we have to go to Dr. Suvarna Malhotra. How do you see this? Words to you. Isn't this transparent? एक transparent आपका था एलिगेशन था कि टोटलिटेरियन,
डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, एकदम टोक तंत्र के हिसाब से देश को चला रहे, मगर वो ट्रांसपेरेंसी बोले अपने आप को मैं खुद उस कटघरे में खड़ा करता हूं, अगर 30 दिन मुझे भी जेल में जाना पड़ा मैं भी पद छोड़ दूंगा। तो इस ट्रांसपेरेंसी, और चौधरी साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला है, हाउ डू यू सी इट? लोकतंत्र पर हमला है कि नाउ वी हैव टू सी दैट ये जो है वो किस प्रकार, how they will be using it. It is like an instrument in their hand which they can be it can be very easily misused. Yes. And we have seen a lot. हमारे खुद के नेता है जो अनिल देशमुख जी वगैरह, उनको कैसे मतलब अंदर किए थे without anything really being proved. So this is what they will definitely do. And as you very correctly said, कि nobody is at unless the person is proved guilty, you cannot say that he is guilty. So that's right. And especially here in this case, if there is a state which is not a BJP state, then definitely they may put a pressure on this. So if the center gets a lot of control over the state. I believe the rumor is that they want to target Mr. Siddaramaiah. Is that correct? Then Mr. Siddaramaiah might go to jail. Anyway, all I'm saying is, सर लक्ष्मण सावजी साहब, आपका रिकॉर्ड भी तो इसमें बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त है ना सर। देखिए ना, सत्येंद्र जैन को आपने 2.5 साल तक जेल में रखा सर, 2.5 years इन जेल। सत्येंद्र जैन ऑफ द आम आदमी पार्टी 2.5 साल तक जेल में सर, और अब जाकर के 3 साल के बाद 4 साल के बाद सीबीआई ने सी समरी फाइल कर दी है। सीबीआई ने कह दिया कुछ केस ही नहीं है, थैंक यू। और बेचारा 4 साल तक जेल में, 2.5 साल तक जेल में रहा बेचारा, आपने उसको सॉरी भी नहीं बोला। सर क्या कर रहे हो सर लक्ष्मण सावजी साहब? क्या डॉक्टर कुमार, यू वांटेड टू से समथिंग? डॉक्टर अनुज कुमार, यू वांटेड टू से समथिंग सर वेरी क्विकली, बिकॉज़ आई हैव टू गो टू लक्ष्मण सावजी साहब। जी बोलिए। मैं ये आप हमसे पूछ रहे हैं सर? हाँ, आपने उंगली उठाई ना, इसलिए आपके पास आया। मैंने कहा कुछ पॉइंट होगा, कुछ बोलने वाला। क्या है, इस बिल को लाने के पीछे की मंशा को समझना होगा। दरअसल इनके पास एक बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन है, जो भी भ्रष्टाचारी लोग इनके में शामिल होते हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं। क्या बात है सर? दरअसल देखिए 1975 की जो बात है, जिस संशोधन के बाद में प्रधानमंत्री पद को सुरक्षित करने के लिए बिल लाया गया था, और आज के बिल में अंतर है सर। दरअसल उस समय प्रधानमंत्री पद की सुरक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन आज अंतर यह है कि विपक्षियों को परेशान करने के लिए बिल लाया गया था। आपने खुद कहा है अभी, हेमंत सोरेन से लेकर के केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया से लेके सत्येंद्र जैन से लेकर क्या हुआ इसमें? अनिल देशमुख जी, नवाब मलिक जी हाँ। तो इनको पता है कि विपक्ष की सरकार गिरानी है, तो इस तरह का बिल लाना होगा। ये तो बेसिक अंतर समझिए कि मंशा साफ नहीं है। राइट, सो लेट्स गो टू तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि ये नायडू और नीतीश कुमार को अपने गिरफ्त में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए, क्या ये तेजस्वी यादव जी का सही ओपिनियन है? डॉक्टर अनुज, देखिए हम तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि यह बिल जो है यह राजनीतिक तानाशाही वाला बिल है। ये लोकतांत्रिक बिल नहीं है ये, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि 30 दिन के बाद है, जो कि 30 दिन तक ईडी सीबीआई लगा देंगे पीछे से, और 30 दिन तक जानबूझ के जमानत नहीं देंगे। जैसे आपने पता नहीं डिग्री के मामले में कोर्ट में क्या हुआ, जज साहब ही नहीं पहुंचे, तो उसी तरह से अगर 30 दिन होगा, जज साहब नहीं पहुंचे। सर ईडी के केस में 6 महीने में जेल बेल मिलती नहीं है सर। ईडी का केस होता है तो मिनिमम 6 months में तो मतलब आप गए, मतलब बेल मिलती। साहब जी साहब, संजय राउत जी 3 महीने में बाहर निकला, बाकी सब लोग 6 महीने से पहले निकले नहीं बाहर। सावजी साहब आप बोले प्लीज। सावजी साहब आपकी बारी है, आप बोले प्लीज, बोलिए। साहब अपनी जो चर्चा चल रही है जी, मैं तीन बातें आपके सामने रखूंगा। बोलिए सर। एक तो पहली बात है, जो चुनाव आयोग के लिए जो सवाल है उसके जवाब चुनाव आयोग ने देने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि जब लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव साथ में हुए, तभी भी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के लिए अलग वोट है और असेंबली के लिए अलग वोट है। तो कभी कभी वो कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली में कहीं कम वोट है, वहां लोकसभा में ज्यादा वोट है लोकसभा कैंडिडेट को, और कहीं कहीं असेंबली के लिए ज्यादा वोट है, लोकसभा के लिए कैंडिडेट को वोट कम है। ये जो डेमोक्रेसी का जो हमारा नजारा है, इसको हमने स्वीकारना चाहिए। बात ऐसी, हम सब 1984 में जब इंदिरा जी का जो हत्या हुई थी, निर्मम हत्या, बहुत वो दुखद बात थी, लेकिन उसके बाद में जो वोटिंग हुई 1984 में, तो लोकसभा के कैंडिडेट को हमारे नासिक जिले में दोनों भी लोकसभा कैंडिडेट बहुत वोटों से विजयी हुए। लेकिन सब 2.5 महीने के बाद
दिसंबर एंड में लोकसभा हुई और 5 मार्च 1985 में असेंबली के चुनाव हुए। 2 महीने और 5 दिन के बाद हमारे नासिक जिले में दोनों भी लोकसभा के सांसद चुनकर जाने के बाद 14 के 14 विधानसभा में कांग्रेस हार गई थी 2 महीने के बाद। अभी ये 1985 की घटना है। लोकसभा का चुनाव लोकसभा का होता है, विधानसभा का विधानसभा होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है, सेल्फ गवर्नमेंट का। हर एक का वोटर, हर एक का कारण अलग अलग होता है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन एक कहीं ना कहीं तो फेक नैरेटिव फैलाने का और एक फैशन हो गई है। हमारी जो सरकार की एजेंसियां है उनको बदनाम करने की साजिश, ये जो विदेशी षड्यंत्र है उसके सहभागीदार ये विपक्षी दल होने जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा आगे, इसका सामना हमको करना पड़ेगा। और बात सब जब हर एक अलग अलग बात है, पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल है, आप आरोप करो, उसमें जो कुछ हो जाएगा। लेकिन लोगों का विश्वास इन लोगों ने गंवाया है, लोगों का वोटर लॉस इन्होंने किया है, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बहुत मेहनत करके 11 साल की उपलब्धि के ऊपर अगर ये आग पर पट्टी बांधकर चलेंगे, इनको कौन माफ करने वाला है? जनता को मालूम है, जनता को मालूम है ना हमने 11 साल में क्या किया है। 11 साल में हमने 55 करोड़ लोग, फिर वही बातें दोहरानी पड़ती है, 55 करोड़ लोग बैंक के साथ जोड़े गए। इन्होंने गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे लगाए, आम आदमी को कभी प्रक्रिया में, विकास के प्रक्रिया में नहीं लिया। ये ध्यान में रखो, जब डायरेक्ट बेनिफिट, जब आदमी को खाते में रुपया जाता है तो जब सुकून मिलता है। कितने लोगों को घर मिल गए, बिजली गई, पानी गया, रास्ते हो गए, टनल हो गए, ब्रिजेस हो गए, रेलवे स्टेशन कैसे हो गए, एयरपोर्ट कैसे हो गए, एम्स कैसे हो गए, स्वास्थ्य के इसमें क्या क्या बदलाव हो गए। ये सब 11 साल की जो उपलब्धि है ना, ये अगर आंखों पे पट्टी बांधकर चलेंगे, अगले बार इनका ये विरोधी दल का नेता होने की भी लायक नहीं रहेंगे। अभी ये मैं आपको खुले तौर से बोलता हूं, जब ये बिहार का चुनाव आया है ना, इसलिए फेक नैरेटिव फैलाकर इनको कुछ हासिल, अभी हम सावधान हो गए हैं, अभी हम इसका प्रिकॉशन लेंगे। ध्यान रखो, आपने लोकसभा में लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया, पिछले बार बिहार के चुनाव में गुमराह करने की कोशिश किया। अभी बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। तुम चाहे कितनी भी फेक नैरेटिव फैला दो, कितनी भी फेक रैलियां करो, कितने भी आरोप करो, रिजल्ट ऑलरेडी तेजस्वी यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी जी सरकार चल रही है, साहब जी साहब, हमारे सरकार के खिलाफ विदेश में जाकर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। वोट चोरो सुनो, बिहार में ये होगा नहीं। वही आरोप बिहार में राहुल गांधी जी का ऐलान है कि वोट चोरी होगा नहीं, के साथ होगा। साहब जी साहब, इनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। साहब जी साहब, बिहार में जनता का विश्वास हासिल करो, बिहार में वोट चोरी होगा नहीं, राहुल गांधी जी का कहना है। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सीएम, राहुल गांधी जी ने कहा कि सीएम अभी तेजस्वी यादव बनेगा, बिकॉज वोट चोरी पर ने काबू पाया है राहुल गांधी जी और पूरे इंडिया अलायंस। और आगे जाके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होगा। वोट चोरी पर टोटल लगाम लगाया है। साहब जी साहब बात ऐसी है, ये रेलवे स्टेशन मेरे बाप का है, ये रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिया, ऐसा बोलने का रेलवे स्टेशन आपका नहीं होगा और वो मेरे बाप का भी नहीं होता है। ये कुछ भी बोलने दो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री करो, उसको प्राइम मिनिस्टर करो, ये कुछ होने वाले, मेरा कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, बोलने के लिए क्या जाता है? इनको कौन बनाने वाला है मुख्यमंत्री? और राहुल गांधी को कौन प्राइम मिनिस्टर? लोग क्या पागल हो गए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने को? क्या क्या हैसियत है, क्या विश्वास है, क्या नैतिकता है? बिहार में आपने कब सरकार बनाया? अरे इनके साथ कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, नीचे सिस्टम नहीं है, इनके बेले देने की औकात नहीं है। और हमारे चुनाव आयोग को बदनाम करते हो, भारत को बदनाम करते हो। बीजेपी ने कहीं बिहार में सरकार, दो बैसाखियों पे टिकी ये सरकार है, दो बैसाखियों पे टिकी ये सरकार है, और ये हमें बता रहे कि हमें कौन दे। यही जनता ने आपको बिठाया, यही जनता हमें बिठाएगी। बस तुम्हारे पास संगठन नहीं है, तुम्हारी बेले देने की औकात नहीं है पार्टी की, क्या बात करते हैं? कहने का मतलब ये हुआ, पहले कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार का चुनाव से चल रही सरकार का वक्त पूरा होने वाला है। संगठन पूरा मट्टी में मिलाया है, अपने बात की जाकिर समझ के संगठन चला है। सर, इसके पहले कि मैं सबको थैंक यू बोलूं, किसी की बात की डॉक्टर अनुज कुमार के लिए मेरे पास एक सवाल है सर। यहाँ जनता वोट देती है,
फिर प्राइम मिनिस्टर राजीव जी, राजीव जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जी, प्राइम शकील मिनिस्टर साहब। बनेगा, उसके क्या बाप की जागीर है? राहुल गांधी शकील को साहब, प्राइम बोलिए, मिनिस्टर बोलिए, बनाएगा, काय क्या बनाएगा? पहले बीएलए बनाने की औकात बनो पार्टी में, दल में। जी शकील साहब कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, साहब ने अभी कहा कि एक नैरेटिव सेट करते हैं। मैं आपसे बताता हूं, अन्ना के सहारे जो नैरेटिव सेट किया गया, जिसमें 2G और कोयला घोटाला, 2G और तमाम घोटालों के आरोप लगाकर, और जो जिसमें कि सारे के सारे आरोप कोर्ट से निराधार हुए, उसी कोर्ट से, उसी न्यायालय से, किसी एक को सजा नहीं हुई, मगर वो किसी एक को सजा नहीं हुई। कोई आरोप निराधार नहीं हुआ है, कोई आरोप नहीं है, किसी एक आरोप में सजा नहीं हुई है। और जबरदस्ती नैरेटिव की बात करते हो, सिर्फ और सिर्फ फर्जी नैरेटिव से ये सरकार चल रही है, सोशल मीडिया और पूरे एक अंबार से ये सरकार चल रही है। जनता जाग चुकी है, चोरी से लेकर हर मामले पे जनता सवाल करेगी, हर अंतिम व्यक्ति तक हर समझाने की कोशिश किया जा रहा है। और विपक्ष लाचार नहीं है, विपक्ष आपके बीच में लड़ रहा है और अंतिम व्यक्ति की बात कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी सर, aren't you a political party? You're a political party ना, कांग्रेस। पहले दल बनाओ, संगठन सर, एक मिनट सर, जो मर गया है वो बाद में बात करो। सर वी अंडरस्टैंड। लक्ष्मण सौजी साहब, आप लोग तुमको छोड़ के जा रहे हैं। जी सब लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? जी सर, हमारे नेता पर विश्वास है, हमारे नियत पर विश्वास है। मैं सवाल पूछ लूं शकील साहब से? सर आपकी इजाजत हो लक्ष्मण सर, कितना गर्म हो गया? कुछ है ही नहीं अरे है शकील साहब, आप तो सुन लीजिए। तो आप लड़ रहे हो, आपके पास क्या है? आपके पास तो कुछ ही नहीं है। हमारे लोगों को अगर इतना ही आपके पास मजबूती है, या मोदी जी में इतना दम है, तो हमारे लोगों को निकाल दो, जिन लोगों को लिए पता चल जाएगा औकात की, तुम्हारी औकात ही क्या है, आप उनको निकाल दो। लक्ष्मण सौजी साहब, आपने नैरेटिव की बात करी, केस कर उनको जेल जाने के लिए दबा कर उनको लेकर अरे लक्ष्मण सौजी साहब, एक सेकंड सर, सर एक सेकंड सर, मुझे बोलने की इजाजत है। पास नहीं कुछ है तो सर मुझे बोलने की इजाजत है। अरे डॉक्टर अनुज कुमार, आप जाइए, नहीं आपसे सवाल पूछना है। छोड़ के हमारे पास शकील साहब एक सेकंड, आप शांत हो जाइए। शकील साहब आप जरा शांत हो जाइए। अच्छा लक्ष्मण सौजी साहब, आपकी बात आ गई, हर एक ने सुन लिया। ईडी और सीबीआई का घर लेकर जाता उन नेताओं को, क्योंकि अरे हर एक ने सुन लिया सर, बना कर लेके जा सर हर एक ने सुन लिया। वही बात कितनी बार बोलेंगे सर? हमारे पास संगठन मजबूत संगठन है, हमारा संगठन लक्ष्मण सौजी साहब, जो इस अहंकारी सरकार से लड़ने के लिए सक्षम है। सर आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए? सत्ता मिले। सौजी साहब, आप क्या कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? तो ये सौजी साहब, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? एनडीए के भी किसी, अरे एक मिनट, अरे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जनता की एक मिनट शकील साहब, एक मिनट शकील चौधरी जी, एक मिनट। असलियत जनता पहचान गई है। हाँ पहचान गई है, वेरी गुड। तो आप क्या लक्ष्मण सौजी साहब, आप क्या कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? आप कांग्रेस में जा रहे हैं? लक्ष्मण सौजी साहब, आप क्या कांग्रेस में जा रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, आप कांग्रेस को आइडिया क्यों दे रहे हैं? सर आप कांग्रेस को आगे आइडिया क्यों दे रहे हैं? अरे ध्यान रखो, हमारी अरे आपने क्या बोला अभी? आपने अभी क्या बोला? संगठन को मजबूत करो, बीएलए अच्छे लेकर के आओ, काम करो, लोगों का काम करो। ये तो आपने कांग्रेस को, आप कांग्रेस को सलाह दे रहे हो। बोल रहा हूँ कि जिनकी ये आप कंसल्टेंट है कांग्रेस के, ये बोल रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। साउची साहब, अगर आप इत्मीनान से सुनेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। अच्छा एक सेकंड सर, एक मिनट मैं सर मैं डॉक्टर अनुज कुमार से कुछ पूछना चाह रहा हूं सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। सर हर एक के लिए बहुत अच्छा, सर हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। अरे एक सेकंड सर, सौजी साहब एक मिनट, कैन आई आस्क हिम अबाउट मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया यूनिवर्सिटी which is also called मगध यूनिवर्सिटी? I have a question for him. तो मैं सुनूं आपको। सर आप अब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? मेरे कुछ पॉइंट से लिया जाए बराए मेहरबानी। सर एक सेकंड सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बस ये सवाल डॉक्टर अनुज कुमार काफी देर से बैठे हैं सर। डॉक्टर कुमार, आप जो बोध गया यूनिवर्सिटी इज मगध यूनिवर्सिटी राइट? इज दैट करेक्ट? मगध यूनिवर्सिटी है ना सर? हाँ सर, मगध यूनिवर्सिटी है। तो मगध यूनिवर्सिटी में जो सेंटर से अभी तक मदद आनी थी सर, पिछले 5 साल में मैंने सुना है जो पूरी ग्रांट आनी चाहिए थी अभी तक नहीं आई है। मैंने ये भी सुना है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है। मैंने ये भी सुना है कि जहां तक स्टाफ वगैरह का सवाल है वहां पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इज दैट करेक्ट? तो कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सामने आप ये मेमोरेंडम क्यों नहीं रखते कि ये सब चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूं। इस 20 सालों में मैं बताता हूं कि
मुझे दुख होता अगर एक लाइन में पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि बिहार के विश्वविद्यालय अपनी मृत अवस्था में हैं और चील कौवे इसको नोच नोच कर खा रहे हैं। अब तो मैं कहूंगा कि इसमें मांस भी नहीं है, हड्डियों को खा रहे हैं लोग। अब सोचिए, बिहार से सिर्फ मजदूर का ही पलायन नहीं है, यहाँ से विद्यार्थियों का भी पलायन है, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो बहुत बदहाल है। अब प्रधानमंत्री आकर घोषणा करते हैं पटना विश्वविद्यालय को 2019 में कि हम सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाएंगे, अभी तक नहीं बना। हम भी चाहते हैं कि आज मगध विश्वविद्यालय पिछले 20 दिनों से ठप है, पठन पाठन का कार्य बंद है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ का, उसको बनाया भी गया है दोबारा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें, कुछ आए, ताकि यहाँ के विद्यार्थी जो we'll have a special show on universities. We shall have a special show on universities in Bihar, because Bihar at one time used to be the #1 state in education. एजुकेशन में #1 स्टेट हुआ करता था हिंदुस्तान का बिहार, which is absolutely true. We must get back to that, irrespective of whichever political party you come from. जिस भी आप राजनीतिक पार्टी से आए वो अलग बात है, बिहार का दर्जा वापस वैसे ही होना चाहिए। शकील साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज हैव योर से। हाँ, मेरे यही सवाल थे कि अभी जिस तरह से हमारे साथी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई है नहीं, सब हमारे पास आ गए। अभी जो आपने ये नैतिकता के सवाल पर जो कानून आया है कि यहाँ 30 दिन में उनको छोड़ना पड़ेगा पद, मैं देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता जी, मगर मुझे ईमानदारी से बताइए, जो 25 बड़े नेताओं पे केस बने थे उसमें 23 नेता बीजेपी ज्वाइन कर लिए जी, वो क्लीन चिट हो गए। जिनको ये भाजपाई दिन रात पानी पी पी के घर आते थे, बुरा भला कहते थे, मंच से अपशब्द कहते थे, उनको पार्टी में लेते ही वो व्हाइट कॉलर हो गए। आज वो उनके साथ सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, सरकारें चला रहे हैं। तो जब वो क्या होता है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पावर आम जनता को दीजिए, मगर ये सरकार ने लगातार सारा पावर अपने पास कंज्यूम करने की कोशिश किया। हमने भी 10 साल सरकार चलाई थी, मनमोहन जी ने सरकार चलाई थी, हमारी सरकार नैरेटिव और प्रचार के बल पे पूरे विश्व में नहीं प्रचारित थी। मनमोहन जी की सरकार पूरे विश्व में अपने काम के बल पे प्रचारित थी। हमने राइट इंफॉर्मेशन, राइट एजुकेशन, हमने वुमेन एम्पावर, हमने मनरेगा, हमने फूड बिल दिया, जिस फूड बिल के बल पे आज ये 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो फूड बिल हमने दिया था। इसलिए आप जनता को मजबूत करिए, जनता के अधिकारों को मजबूत करिए, जनता के, ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकार द्वारा चलाई योजनाएं पहुंचे और अंतिम व्यक्ति उससे, उसके परिवार में और उसके आसपास खुशहाली आएगा। एक व्यक्ति जब उसके व्यक्तिगत वो खुशहाल होता है ना, तो वो अपने गांव में होता है, अपने घर में होता है, गांव में होता है, प्रदेश में होता है, और फिर वो देश का व्यक्ति होता है। इसीलिए अंतिम व्यक्ति तक और जो जरूरतमंद है उनके तक सरकारी योजनाएं जानी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। इस सरकार की दिन रात की जो कोशिशें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये होती हैं कि किस तरह विपक्ष को एक चंगुल में फंसाया जाए, विपक्ष को परेशान किया जाए, ये जो पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी की बात है, संस्थाओं को दबाया जाए, संस्थाओं के अधिकारियों पे दबाव बनाकर काम किया जाए। अंतिम व्यक्ति है उसके उस तक पहुंचना चाहिए। क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय योजना जो है वो कांग्रेस बोल रही है आपको लागू करने के लिए। लक्ष्मण साहू साहब, मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट। डॉक्टर मल्होत्रा, आई वांट टू नो, जो पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी की बात कर रहे हैं, इतने हॉस्टाइल हो गए आजकल। शरद पवार साहब ने कहा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, 1978 में शरद पवार साहब ने वसंत दादा पाटिल के गवर्नमेंट सरकार को गिरा दिया था वसंत दादा के गवर्नमेंट को। बट हॉस्टिलिटीज, इतना प्यार मोहब्बत था आपस में, और देश हित और स्टेट हित उनके दिमाग में थे। शरद पवार साहब को वसंत दादा ने प्रपोज किया एज ए सीएम, ये शरद पवार के साथ। क्या ये हॉस्टिलिटीज आज के तारीख में दिख रहे हैं? जैसे चौधरी साहब ने कह रहे, साहू जी साहब है, डॉक्टर साहब, तो हाउ डू यू सी दैट? क्या ये आज पॉलिटिक्स शो पे भी दिख रही थी, तो अभी जो शो पे भी काफी हॉस्टिलिटी दिख रही थी। they love each other. They love each other. तो आप कैसे that is the way it should be. That is real politics, where you just fight on the particular topic without raising the voice. I mean, that is the way actually the discussion should be there. And we have always seen, even अडवाणी जी के साथ मतलब काफी हद तक पुराने टाइम पे तो सब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, तो उनके रिलेशन सबके साथ अच्छे ही रहे हैं, सबके रिलेशन अभी भी अच्छे। आज ही फॉर एग्जांपल, मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, टुडे प्रियंका गांधी जी हैज मेट नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, एंड शी हैज टोल्ड हिम, बिकॉज ही इज द हेल्थ मिनिस्टर, कि भाई वहां पर जो उनके वायनाड के अंदर जो हॉस्पिटल है और उसके साथ में जो कॉलेज है उसको प्लीज दोबारा स्टार्ट कीजिए, हालत खराब है उधर। एंड ही हैज प्रॉमिस्ड, एंड इट्स अ वेरी लवली मीटिंग। उन्होंने खुद ने पोस्ट किया है, पिक्चर्स पोस्ट करी हैं और कहा है कि नड्डा जी ने प्रॉमिस किया है, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड
with what Mr. JP Nadda has said. She is महाराष्ट्र के herself. लोग गडकरी जी को भी मिलते हैं, नितिन गडकरी उनको भी सर मिलते गडकरी हैं। जी तो सबके फेवरेट हैं। उनकी तो बात चौधरी साहब जो कह रहे कि आज के तारीख में रूलिंग पार्टी का एक ही काम है ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ मुकदमे चलाओ, उसको जेल में डाल दो। साहू साहब जितने पॉलिटिकल केसेस हो गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई के, मैक्सिमम पॉलिटिशियन ऑपोजिशन के, जो चौधरी साहब बोल रहे हैं, तो कौन सा मोहब्बत है, कौन सा प्यार है? चौधरी साहब किधर है प्यार? साहू साहब बोल रहे हाँ मेरे लिए सवाल है। हाँ अभी के लिए सवाल है साहब। बात इसमें ऐसा है, कानूनी तौर पर जो कोई कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं चलता है कोई कानून। हमारा राजनीतिक दल है, हमारे संगठन जिस तरह से चलना चाहिए हम संगठन चलाते हैं। सरकार के दिशा से चलता है, लेकिन सरकार चलते समय विपक्ष का जो दायित्व होता है इसके लिए हमको बोलना पड़ता है, इतना ध्यान रखो। कोई भी बात में हमारे कोई भी मंत्री ने, सेंट्रल मिनिस्टर ने पिछले 11 साल में ये कांग्रेस का सांसद है इसलिए इसका काम नहीं करना है, ऐसा कभी किया नहीं है। या हम प्रतिशोध की राजनीति करने के लिए सरकार में नहीं है जी। ये सबको मानना पड़ेगा ये बात को। तो उसके कोई ये नहीं होता है। कैसे माने? शरद पवार साहब को भी आपने ईडी का नोटिस भेज दिया था, वोट लेकर चुन के साहू जी साहब। शरद पवार साहब को भी ईडी का नोटिस भेज दिया था। वो शरद पवार साहब काबिल थे इसलिए। नंबियार साहब मेरी बात सुनो। इनका सबका जो पहला इतिहास है, सब पूरी संस्थाएं कांग्रेस के पास थी। मार्केट कमेटी कांग्रेस में, शिक्षा नीति कांग्रेस में, सब कोई शुगर फैक्ट्री पूरी कांग्रेस की, कोऑपरेटिव सेक्टर पूरा कांग्रेस का। ये पूरी की पूरी सत्ता 100% इनके साथ होते हुए हमने कभी चुनाव आयोग को नहीं गलत बोला। हमने सर चुनाव आयोग कोई भी को सरकारी तो अभी गलत बोल रहे को दोष नहीं दिया। हम जनता में गए, जनता का विश्वास हासिल किया, मेहनत किया। तो वही तो कांग्रेस करी उस वक्त। थोड़ा सा विरोध विपक्षी का इनके पास इलेक्शन आया हुआ है, करती थी ना सर। तो ये क्या नौटंकी कर रहे हैं? सर वो बोल रहे हैं उस देश वक्त की व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं, सर देश को बदनाम कर रहे हैं। सर वो ये बोल रहे हैं ये कि कैसा उस वक्त अगर आप कांग्रेस को वोट देते थे तो कांग्रेस को ही पड़ता था, बीजेपी के पास नहीं जाता था। आजकल जहां मर्जी वोट जो नहीं, चीज वही मर्जी को मैं भी कह आपके रहा पास हूं कि आता है। आज ऐसा होता है तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? डॉक्टर अनुज ये हमने देखा कि लालू यादव जी का बीजेपी का कहना है बूथ कैपिंग, जब बूथ होता था तो बमबारी देखे थे, बम लेके बूथ पर फेंका करते थे, बम ब्लास्ट हो जाता और फिर जो वहां के लोकल गैंगस्टर थे वो अंदर जाके सबका वोट मारते थे और बोले चलो तुम्हारा वोट हो गया। क्या ये सीन था कि नहीं? बहुत सारे वीडियो कैमरास में भी कैप्चर हुआ था। जी अब मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए बहुत बढ़िया मसला है ये, आपने बहुत संवेदनशील सवाल को पूछा है और ये सामाजिक न्याय के सोच से जुड़ा हुआ सवाल है ये। लालू प्रसाद यादव जी से पहले जो गरीब हुआ करते थे, जो दलित हुआ करते थे, जो पिछड़े हुआ करते थे, उनको तो बूथ पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। मैं जिस समुदाय से हूँ, जिस समाज से हूँ, मैंने उसको देखा है कि जो सामंती प्रवृत्ति के लोग होते थे, जो उच्च जातियां होती थी, गरीबों को तो चढ़ने नहीं देते थे। जब वो पूरी बात मेरी खत्म, जब आपने माजरा नहीं जमाया, पूरी बात देखिए, बोलने मत पूरी क्या बात, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सरकार किसकी थी जब? अरे जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी। कौन थे जगन्नाथ मिश्रा? कांग्रेस के थे। पहले की मैं बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी का आप जो गाना गा रहे हैं अभी, उनकी सरकार। मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात होने दीजिए। किसको सुना रहे हैं? जितने भी किसको? सारे सामंती भी बीजेपी में शामिल हैं, जो लोग रोकते थे सारे बीजेपी के सदस्य हैं। जिसका तुम अरे अभी सारे आपके सदस्य हैं, जितने भी सामंती लोग थे, जितने भी उच्च लोग थे, जिसके साथ गले मिल रहे हो सुनिए मेरी बात, उनकी सरकार थी। सारे मिलकर वोट चोरी कर रहे हो आप लोग। दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं आप लोग। सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं मैं। वो दौर था, सहानुभूति जताने की गरीब जनता सारे के वही लिए, लोग हैं और उधर जो कांग्रेस बीजेपी के में साथ शामिल हैं। सारे सामंती लोग थे जो गरीब दलित पिछड़ों को वोट नहीं देने देते थे। लालू प्रसाद यादव आए, उन्होंने कहा वोट दो। सुनिए, आप राहुल गांधी के खिलाफ है क्या अभी? अरे भाई वो सारे कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को समीक्षा किया, आपने सुधारा, लेकिन वो सारे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, सामंती प्रवृत्ति के लोग थे, सारे आपने शामिल कर लिया। सारे वाशिंग मशीन में धोकर आपने शामिल कर लिया उसको। जितने भी अपराधी थे, जितने भी भ्रष्टाचारी, सब बीजेपी में शामिल है, क्योंकि इनके पास सारे भ्रष्टाचार होने वाला मशीन है इनके पास। गंगा जल छिड़क के सबको पवित्र कर दिए हैं।
ठीक है, और उल्टा कांग्रेस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के की मामले समीक्षा में करती आपको घर में है बिठा और वो देता है। आपातकाल से आप लेकर बात इतिहास करते की हैं। गलतियों पे पछता चुकी है वो, लेकिन आप अभी अघोषित आपातकाल चला रहे हैं, उस पर कभी समीक्षा किया है आपने? हमारे बात कर रहे हैं आप, जनता के सारे साथ अपराधी, ईमानदारी सारे है। भ्रष्टाचारी अभी बीजेपी में शामिल है। वो हमारी कांग्रेस के समय में ईमानदारी जितने जनता के साथ जितने भी है। भ्रष्टाचारी थे सब आप में शामिल हैं। अजीत जी। पवार जैसे अपराधी को आपने जो जब हम गंगा नदी गुनहगारों छिड़क के के आपने शामिल खिलाफ कर दिया है आपने। कानून लाते हैं तो क्या बात विरोध कर रहे हैं करते आप? और सुनिए मेरी गरीब की बात, करते हो। वोट देने का अधिकार सीधे बैठ के। वंचितों को बेदखल कर दिया गया था। लालू जब प्रसाद आते हैं, जब आतंकवाद के गरीब खिलाफ गुरुआ को लड़ाई बूथ पर रहती है, चलकर वोट तो देने का विरोध अधिकार करते हैं। दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पूरे जब दलित गुनहगारों पिछड़े की के जो खिलाफ आबादी जब सबसे कानून ज्यादा लाते है, हैं, एक तो साथ विरोध मिलकर करते वोट हैं। देने और लगे, गरीब के जब लड़ाई हमारी लड़ने सत्ता के में लिए नौटंकी जब करते इनका हो। सीट सुपला साफ होने लगा तो कहते हैं जिन निकलता था। दरअसल क्या है कि दलित पिछड़ों का एकता का उभार था, वो सामाजिक समीकरण ऐसा बन गया था जहां हमारी संख्या बल बढ़ गई थी और हर सीट पे हम जीत रहे थे। तो वो आप बीजेपी ने ले लिया ना सर पूरा, सर वो तो आप बीजेपी ने पूरा टेक ओवर कर लिया है ना। नहीं सर, आपका जो वोट बैंक था वो तो बीजेपी के पास चला गया है। जी सर, बताइए। बीजेपी तो कभी सत्ता में रही नहीं है। ये तो मुंगेरी लाल के सपने देखें। ये 2010 को छोड़ दिए, अरे राज्य आप में सबसे मुंगेरी बड़ी लाल पार्टी के के रूप में खौफ देख रहे हो है। अभी। अरे भाई साहब, अभी भी हम बड़े पार्टी के रूप में हैं। तुमको मिलने वाला नहीं है। आपने तो कभी सत्ता में रहा ही नहीं अभी- बिहार अभी में। हम सावध अभी हो भी गए हम हैं। अभी भी हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप अभी में हम हैं। प्रिकॉशन ठीक लेने है, वाले हैं। जोड़ तोड़ करके हम आपकी सरकार नहीं बना नौटंकी पाए। इस बार चलने और वाली नहीं है। जब भी हम सरकार में बनाए तो हम रोजगार की बात किए, महंगाई की बात लेकिन किए, अनिल अपराध की साहब, बात डॉक्टर साहब मैंने पिछली बार भी देखा था। कितने दिन करेंगे आप लोग? अरे सर एक अरे सेकंड नौटंकी तो 20 साल से आप लोग कर रहे हो। सर 2024 में आप किस गरीब की बात कर रहे हो? अरे भाई, अभी भी हम बड़े पार्टी के रूप में हैं। आपने कभी सर 2024 में डॉक्टर साहब तेजस्वी यादव की जब रैली हुई पटना के गांधी मैदान में, सर इतनी बड़ी रैली शायद किसी ने देखी नहीं होगी पहले, छगन भुजबल जी को छोड़ करके, जब उन्होंने समता परिषद की रैली करी थी वहां पे। यहां पर पिछले और सिर्फ 5 सीटें आई सर आपकी। मतलब भीड़ आप इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन वो भीड़ जाकर के बीजेपी वोट देती है सर। बोलिए नहीं सर, देखिए भीड़ की बात नहीं, आप वोट परसेंटेज की समीक्षा करिए ना। हम कितने वोट से पीछे थे, Correct. उसकी बात करिए। जी, देखिए, that is correct. Correct. I अब agree. हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी, हम लगातार 2010 से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता हमें चाहती है, लेकिन वो अलग जी। बात है कि जोड़ तोड़ की राजनीति में हम पीछे रह जाते हैं, हम सत्ता में नहीं आ पाते। ठीक है ना, वो पिछले बार विधानसभा आपने देखा होगा, सिर्फ हम 1200 के वोट। तो इस बार पैटर्न चेंज होगा या एक बार फिर नीतीश बाबू आएंगे? बिल्कुल इस बार युवा, देश की जो युवा हैं, माता बहनें हैं, हमारे साथ हैं। आप देखिए ना, जो हमने वोट अधिकार यात्रा निकाला है उसमें हुजूम लोग जुट रहे हैं। उसको हम बुलाए नहीं थे, मोदी जी की तरह हम भाड़े पे नहीं बुलाते भीड़ को कि सरकारी संस्थाओं को छुट्टी दे दो, सरकारी संस्थाओं को छुट्टी दे दो, बस। अरे मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो लाइव देख रहा हूँ ना अभी। मैं लाइव देख रहा हूँ पिछला वीडियो। मोदी जी को चलिए सर, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो लाइव देख रहा हूँ ना। पिछली बार आपने वीडियो देखा ना सोशल मीडिया में कि लोगों को कैसे कैसे जबरदस्ती लाया गया, जीविका दीदी को लाया गया, आशा दीदी को लाया गया। अरे भाई साहब, चलिए, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, ग्रेट प्लेजर। लक्ष्मण साहू साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, ऑलवेज अ प्लेजर। शकील साहब आया करें, ईमानदारी में गायब मत हो जाया करें। शकील चौधरी साहब इस तरीके से गायब मत हो जाया करें, प्लीज आया करें। चोरी बंद करिए आप। राइट, डॉक्टर अनुज कुमार, थैंक यू वेरी मच। जमीन पे क्या है तुम्हारा? लक्ष्मण साहू साहब, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, धन्यवाद डॉक्टर मल्होत्रा। नमस्कार टू एवरीबॉडी। शकील चौधरी साहब, It's been a lovely discussion. वाले मुर्दाबाद। मैं हमेशा बोलूंगा साहब, फेक नैरेटिव फैलाने वाले मुर्दाबाद। हर हर महादेव। चलिए सर, नमस्कार। It's been a great pleasure and it was a nice discussion. Fantastic. और लक्ष्मण साहू जी साहब जब भी आते हैं कलर डाल देते हैं, Yes, थोड़ा बहुत कलर आ ही जाता है। Yes, बिल्कुल। वैसे वो असली है फेक है, मेरा ये कहना है, my point is very simple. Sir, it's every political party's duty to set a narrative. And it's the duty of the other party to show that it's a fake narrative. What's the problem? I don't understand. Whatever be the narrative, last time the narrative was कि संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में इसलिए आया क्योंकि ये बात सीधी सादी थी कि कोई 4 भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने बोला आप हमें 400 दे दीजिए, वी विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद वो पॉइंट इन लोगों ने पकड़ लिया। महाराष्ट्र के चुनाव में मैं फिर बोलता हूं, लाड़की बहन योजना की वजह से देयर वाज एन अनस्टॉपेबल फोर्स। व्हाट कुड यू डू? सीधी बात है सर, दैट इज द टेम्पलेट। मैं कहता हूं बिहार के अंदर भी अगर इस किस्म की योजना कोई नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ गए तो तेजस्वी यादव जी के लिए बहुत मुश्किल होगी। दैट्स व्हाट आई थिंक।
Anyway, that's With my the slogan in Bihar, vote किधर भी जाए, CM बनेगा नीतीश कुमार ही. CS बनेंगे नीतीश बाबू. So whatever happens, Nitish Kumar is going to be the CM. Yes. And how long? But it's very sad what is happening to Bihar. What is really and truly sad. Bihar has still not gotten out of that particular definition of being a Bimaru state. पहले Bimaru state हुआ करते थे, उसमें से बिहार सबसे आगे था. और अब उत्तर प्रदेश तो बाहर आ गया है, वो कहते हैं. राजस्थान भी बाहर आ गया है, ऐसा उनका कहना है. So Uttar Pradesh is competing with Maharashtra, 1 trillion economy. yes. So and they are really working towards it. Computer, defense, अलग Sir, corridors, maximum number of tourism. iPhones are made in Uttar Pradesh, which are sold in United States of America. United States of America में 71% जो iPhones हैं, वो made in UP हैं, जो आज की तारीख में USA में बिक रहे हैं. The BrahMos missile is being manufactured in Uttar Pradesh. आपकी जो नई जो राइफल आई है, जो AK-203 है, that is also being manufactured in Uttar Pradesh. Drones also in Lucknow. In Uttar Pradesh. Yes. हर जगह पे उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री बहुत प्रोग्रेस करी है. अब ये शोध का विषय यानी रिसर्च का विषय है कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लोग आंध्र प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, और उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं. I think it's a matter of research. But the main thing is, India is also the number 2 mobile manufacturer of the world. That's right. Of the entire world. I mean, these things. And very speaks soon, on leadership. And very soon, प्रदीप जी, जिस प्रकार अभी SCO की मीटिंग होने वाली है, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की, उसके बाद मुझे लगता है कि चाइनीज इंडस्ट्री बहुत आने वाली है उत्तर प्रदेश में. सबसे ज़्यादा यूपी में ही आएगी. Let me tell you very frankly. I think it's a windfall gain for Mr. योगी आदित्यनाथ कि ट्रंप साहब ने इतने टैरिफ लगा दिए और सैंक्शन कर दिया इंडिया को. अब रशिया और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत आएगी उत्तर प्रदेश में. ये होने वाला है. मार्क माई वर्ड्स. Nobody knows about this. I'm telling you right now. And remember, you heard it right here first on Nation Now. Nation Now या पर आपने सबसे पहले सुना, याद रख लीजिए. तीसरी चीज़ क्या है जिसके साथ हम लोगों ने ओपन किया था, but unfortunately people didn't have the requisite information. The fact remains, I really would love to know who is the IT cell really attacking. The BJP का जो IT cell है वो किसको अटैक कर रहा है असल में? Which is the think tank? भाई एक्स में तो बार बार उनका अंबानी साहब की ORF का नाम आ रहा है, यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का. लेकिन काफ़ी लोग अलग कह रहे हैं कि वो अलग फाउंडेशन भी है, 3-4 और हैं, शायद वो भी हो सकते हैं. लेकिन कुछ लोगों ने, भारतीय थिंक टैंक्स ने जाकर के भारत के खिलाफ काम किया है अमेरिकी व्हाइट हाउस में, ये कहा जा रहा है. और मोदी जी के साथ धोखा हुआ है. उन्हीं के लोगों ने धोखा किया है मोदी जी के साथ, ऐसा कहा जा रहा है. We'll discuss that tomorrow as soon as more information comes in. In the meantime, if you have not subscribed to the channel so far, please subscribe. Subscribe to the fastest growing channel of the nation now. जी हाँ, fastest growing channel of the nation. और जो अभी कहा गया था कि सब क्या वो शकील साहब बोल रहे थे कि आपने सब चैनल में ये कर दिया वो कर दिया, मैं वही बोल रहा था उनको. आजकल कोई चैनल वाले दिखता नहीं है भाई. It is now convenience viewing. Whenever you want to view, you go on your phone and you view whatever you want, and that's why people like us are surviving. सीधी बात है. तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. As Pradeep ji said, it is the fastest growing channel of the nation. Nation Now. और अपने comments ज़रूर भेजें. Please do send me your comments on whatever you've heard over here. We would love to read your comments. And thank you very much for your support. Please continue your support. अपना समर्थन इसी तरीके से जारी रखें. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद. जय हिंद.